بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اسکاٹش میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے ناول کا نام ہے مجھے مانگنے کی ادا نہ دے اور اس کی رائٹر ہیں مریم عباسی۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ وہ ایک اندھیری رات تھی۔ گھپ اندھیرے نے ہر چیز کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ آسمان پر چھائے گہرے بادلوں نے چاند تاروں پر پہرے بٹھائے ہوئے تھے تو زمین پر سرد برفیلی ہواؤں نے تمام جانداروں کو اپنے ٹھکانوں میں دبکنے پر مجبور کیا ہوا تھا۔ ایسے میں اس جنگل میں گھری سنسان سڑک پر وہ تنہا اپنی گاڑی کے کھلے بونٹ پر جھکی ہوئی تھی۔ وہ ایک دراز قد لڑکی تھی جو سیاہ لانگ کوٹ میں ملبوس تھی۔ رات کی تاریکی میں بھی اس کی کمر پر بکھرے سیاہ سلکی بال نمایاں ہو رہے تھے۔ کافی دیر جھکی رہنے کے بعد وہ سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے اور بے جان ہو چکے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں ڈال کر ہونٹوں کے ساتھ لگائے اور گرم سانسوں کے ذریعے ان میں جان ڈالنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو سانسوں سے حرارت پہنچ رہی تھی تو ہاتھوں کے اوپر گرم آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے، آنسو جو کہ اس رات کی ہولناکی میں اس کی بے بسی کی داستان سنا رہے تھے۔ لیکن انہیں آنسوں کی گرمی برف پڑتے ہاتھوں کے لیے راحت کا سامان بھی تھی۔ آسمان کی وسعتوں پر قبضہ جمائے بادلوں نے کسی فاتح جنگجو کی طرح گرج کر اپنی فتح کا جشن منایا اور زمین کی آغوش میں پناہ ڈھونڈتی اس زمین زادی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ہونٹوں پر سمٹے ہاتھوں نے پھیل کر پورا چہرہ چھپا لیا اور ایک دبی ہوئی سسکی ہاتھوں کا حصار توڑ کر برفیلی ہوا کے سپرد ہوئی تھی۔ بجلی نے کڑک کر بادلوں سے یکجہتی کا اظہار کیا اور وہ سسکیاں دباتی اپنی کار کی اوٹ میں ہو کر پاؤں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ لرزتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے فون نکال کر دیکھا مگر سگنلز ابھی تک نہیں آئے تھے۔ اے اللہ مجھے نکال دے اس مشکل سے۔ فون واپس جیب میں رکھتے ہوئے اس کے جسم کے ہر روئے سے دعا نکلی تھی۔ سردی سے اکڑتی ٹانگوں نے جسم کا بوجھ سہارنے سے انکار کر دیا سو وہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی دونوں کوہنیاں گھٹنوں پر تھی اور ہاتھوں نے چہرے کو تھاما ہوا تھا۔ سیاہ سلکی بالوں نے آگے کی طرف جھک کر چہرے کو تقریباً ڈھانپ لیا۔ چند منٹ گزرے کہ اسے اس طرح بیٹھے ہوئے جب کہیں دور سے موٹر بائیک کی آواز سنائی دی۔ اس کی دھڑکن کی آواز خطرناک حد تک بڑی تھی۔ اندھیری رات، تنہائی اور اکیلی لڑکی، کئی کہانیاں ایک لمحے میں اس کے ذہن کی اسکرین پر نمایاں ہوئی تھیں۔ اس کا خوف حد سے سوا ہوا۔ انسان شاید وہ واحد مخلوق ہے جو سب سے زیادہ اپنے ہی ہم جنسوں سے خائف ہے۔ سو وہ بجلی کی سی تیزی سے اٹھی اور سڑک کے کنارے بنی بلاکس کو پھلانگتی ہوئی اس گھنے اندھیرے جنگل میں اتر گئی۔ کئی سوکھے پتے اس کے پاؤں کے نیچے آ کر چرمرائے تھے، کئی پتھروں سے اسے ٹھوکر لگی، کئی جھاڑیوں نے اس کا دامن پکڑا۔ لیکن وہ اس وقت تک نہیں رکی جب تک بائیک کے رکنے کی آواز نہیں آئی۔ بائیک کے رکتے ہی وہ سانس تک روکے جہاں تھی وہیں بیٹھ گئی۔ اس کے دائیں جانب ایک درخت تھا۔ پھونک پھونک کر قدم رکھتی وہ اس درخت کی اوٹ میں ہوئی اور اس کی غیر ہموار اور نرم چھال والا تنا پکڑ کر اس نے خوف اور سردی سے اکڑتے اپنے جسم کو سہارا دیا۔ بائیک والا بائیک روک کر اترا اور اب یقیناً گاڑی میں دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر اس نے ٹارچ کی روشنی چاروں طرف گھمائی۔ اس لڑکی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ مزید سمٹ کر درخت کے ساتھ بالکل چپک گئی اور پھر وہ آ رہا تھا، وہ اسی طرف آ رہا تھا، شاید نہیں یقیناً۔ اس نے گیلی اور نرم زمین پر اس کے قدموں کے نشان دیکھ لیے تھے۔ خوف کی وہ آخری حد تھی جس کو اس نے چھوا اور پھر اسے لگا اس پر بے حسی طاری ہونے لگی ہے۔ جو ذلت اور تکلیف قسمت میں لکھی تھی وہ اس سے نہیں بھاگ سکتی تھی۔ روشنی بہت قریب آ چکی تھی اور اس کی بے حسی اتنی بڑھ چکی تھی کہ اب اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس سے چند قدموں کے فاصلے پر آ کر رکا۔ گاڑی نہیں چلے گی ابھی، لیکن میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ کچھ اجنبی آواز تھی لیکن لہجہ دوستانہ۔ ڈرے نہیں، سب ٹھیک ہے، تسلی دیتا ہوا اپنائیت بھرا انداز۔ اس کا ذہن کام کرنا بند کر چکا تھا لیکن ذہن کی سطح سے نیچے کہیں بہت گہرائی سے ایک فیصلہ آیا اور وہ درخت کی اوٹ سے نکل آئی۔ وہ دراز کا شخص تھا، اس نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے سامنے آتے ہی اس نے رخ موڑ لیا اور اب وہ واپسی کے راستے پر رواں تھا۔ وہ جیسے کسی عمل کے زیر اثر اس کے پیچھے چلنے لگی۔ روڈ پر واپس آنے کے بعد اس نے ہدایت کی گاڑی لاک کر دی۔ اس نے بالکل میکانکی انداز میں اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ اس کے پیچھے بائیک پر بیٹھتے ہوئے وہ عجیب سی کیفیت میں تھی، ایسی کیفیت جس میں اپنا آپ بھی اجنبی لگے۔ بائیک کی رفتار نارمل تھی لیکن سرد ہوا تماچے کی طرح لگ رہی تھی اور وہ اس کے کندھے پر برف کیا ہوا ہاتھ رکھے بے حس سی بیٹھی تھی۔ 1.5 گھنٹے کے بعد اس کے گھر کے گیٹ پر بائیک رکی۔ اپنی گلی، اپنا گھر، وہی جانا پہچانا ماحول۔ اپنائیت کے احساس سے اس کی حسیات پر جمی برف پگھلنے لگی۔ اس نے بے ساختہ اس اجنبی کے کندھے سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور پھر بائیک سے اتر آئی۔ ایک لمحے کی بے تاخیر کیے بغیر اس نے دروازہ پیٹ ڈالا تھا۔ اندر قدموں کی چاب ابھری تو اس کے ہاتھ گیٹ پر سے ہٹے اور اس کی توجہ بائیک والے کی جانب گئی۔ وہ پیچھے مڑی۔ تم کون ہو؟ اس کے الفاظ منہ میں رہ گئے کیونکہ اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔
तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो? चारों तरफ से यही सवाल गर्दिश कर रहा था। सीमट उखड़ी दीवारें पूछ रही थी, तुम कौन हो? बर्फ के गालों की तरह सफेदी गिराती छत महवे सवाल थी, तुम कौन हो? लोहे की बेजान सुलाखों ने भी कुव्वते गुयाई हासिल कर ली और उनकी ज़बान पर एक ही सवाल था, तुम कौन हो? दीवार के साथ लगे बल्ब से निकलती जर्द नहीफ रोशनी की किरणें हैरान सी पूछ रही थी, तुम कौन हो? दीवारों के साथ सर टकराती सर्द हवा नोहा कना थी, तुम कौन हो? वो नंगे फर्श पर हाथों का तकिया बनाए चित लेटा खामोशी से इन सवालों को अपने ऊपर हमलावर होते हुए देख रहा था। उसने कैदियों का लिबास पहन रखा था, उसका चेहरा नीलो नील था, उसका जिस्म हड्डियों का ढांचा बनता जा रहा था। जिस्म के जिस हिस्से पर भी ध्यान की रोशनी पड़ती वहाँ दर्द की लहर किसी जहरीली नागन की तरह सर उठाती और इस लहर के उतार चढ़ाव में एक ही सवाल रक्स करता, तुम कौन हो? वो दौर गुजर गए जब सफ़ेद घोड़ों पर सवार शहजादे आया करते थे। कार की पैसेंजर सीट पर बैठी डिदा ने अपनी ज्वेलरी उतारते हुए बयान दिया, तो हुरैन जो कर ड्राइविंग कर रही थी उसने तिरछी निगाह से अपनी सहेली को देखा। वो दोनों इस वक्त हिबा की शादी से वापस आ रही थी। हिबा जो कि कॉलेज के ज़माने में बने उनके इस ग्रुप का तीसरा फर्द थी। कॉलेज का दौर ख़त्म हुआ, फिर यूनिवर्सिटी के 4 साल भी पलक झपकते गुजर गए और अब तो यूनिवर्सिटी को ख़त्म हुए भी 4 साल होने को आए थे। रिदा की शादी यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में हो गई थी और अब वो 2 बच्चों की माँ थी। आज हिबा भी पिया देश सुधार गई। हुरैन को समझ आ रहा था कि रिदा का इशारा किस तरफ है, मगर उसने कसदन सिर्फ सरफे नज़र किया तो ये कि तुम भी अब किसी प्रिंस चार्मिंग का इंतज़ार छोड़ दो और किसी ढंग के बंदे का इंतखाब करके अपने वालिदैन पर रहम करो जो तुम्हारे इस मुसलसल इनकार से शदीद परेशानी का शिकार है। आंटी तो कई बार पूछ चुकी है मुझसे कि कहीं तुम किसी को पसंद तो नहीं करती और उनके सामने जिक्र करने से कतरा रही हो, और मैं उन्हें यकीन दिला दिला कर थक चुकी हूँ। यही तो मसला है कि आपकी बेटी के मेयार पर कोई पूरा उतरता ही नहीं। तुम्हें मेरी तबीयत का पता तो है ना। शादी तो बहुत बड़ा मामला है। मैं तो एक शर्ट ख़रीदते हुए भी हर तरह से तसल्ली करती हूँ कि जिस तरह की शर्ट मुझे चाहिए इस तरह की सबसे बेहतरीन शर्ट मिले मुझे। उसके अंदाज में कोई दिखावा या गुरूर नहीं था, बल्कि वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में अपनी दोस्त से अपनी आदत का जिक्र कर रही थी, जिससे कभी कभी वो खुद भी तंग आ जाती थी। इसकी वजह पता है क्या है? ज्वेलरी बैग में डालते हुए रिदा ने सवाल किया, जिसके जवाब में वो सवाल ही की तवक्का कर रही थी। क्या? मेन रोड से टर्न लेते हुए हुरन ने सवाल ही किया था। सबसे पहले तुम्हारा इकलौता होना, फिर तुम्हारे वालिदैन की बेपनाह दौलत और फिर तुम्हारा बेहद खूबसूरत होना। तुम्हें लगता है कि दुनिया की हर बेहतरीन चीज़ पर तुम्हारा हक है। चलो मान लिया तुम्हारा है यह हक। तुम लो बेहतरीन चीज़ें क्योंकि तुम अफोर्ड कर सकती हो और तुम इतनी हसीन हो कि तुम पर हर चीज़ सूट भी करती है। मगर प्लीज़ खुदा के लिए इंसानों को चीज़ों की कैटेगरी से निकाल लो। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जो बिल्कुल परफेक्ट हो, ना परफेक्ट हो लेकिन मेरे दिल को तो लगे। हुरैन का अंदाज बेनियासा था। जब ताल्लुक बनता है तो दिल भी लग जाता है। वो लोग अब रिदा के इलाके में दाखिल हो चुके थे और वो ज्वेलरी उतारने के बाद अपना मेकअप साफ कर रही थी। बच्चों की अम्मा बनने के बाद वो घर में फुल टाइम ऑन ड्यूटी होती थी, इसलिए अपने काम गाड़ी में ही निपटा रही थी और साथ दोस्त को मशवरों से भी नवाज रही थी। जैसा तुम्हारे केस में हुआ, ज़रूरी नहीं कि सबके केस में वही हो। हुरैन उससे इत्तेफाक नहीं करती थी। मर्ज़ी है तुम्हारी, फोर्स तो तुम्हें तुम्हारे सगे माँ बाप भी नहीं कर सकते, मगर मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अहमर एक अच्छी बेहतरीन चॉइस है। फ़ॉरेन क्वालिफाइड है, गुड लुकिंग है, अच्छी फैमिली से है, एक चलता हुआ ख़ानदानी बिजनेस है उसके पास, और फिर सबसे बढ़कर तुम्हें पसंद करता है। इस तरह की खसूसियात के हामिल बहुत सारे लोग हैं मेरे इर्द गिर्द। हुरैन के अंदाज में फिर से एक बेनियाजी थी, मगर अहमर में ये सारी खसूसियात इकट्ठी हैं। सोच लेना अच्छी तरह उसे इनकार करने से पहले, क्योंकि आंटी अंकल 100% राज़ी हैं। और ये भी ध्यान में रखना कि आज से चंद साल बाद शायद तुम्हें ऐसे ऑप्शंस मिलना ही बंद हो जाए। गाड़ी रिदा के घर के सामने रुक चुकी थी। उतरने से पहले उसने कुछ और पहलू उसके सामने खोलकर वाज़ेह किया। ओके, अल्लाह हाफिज़, सोचना ज़रूर, कहकर वो उतर गई और हुरैन का सारा रास्ता सोचों के ज़रिए असर ही गुजरा था और इन्हीं सोचा का मरकज़ अहमद था। अहमद जो कि उसके पापा के एक बिजनेस फ्रेंड का बेटा था। उसका ख़ानदान उनके हम पल्ला था, शक्ल सूरत भी मुनासिब थी, पढ़ा लिखा भी था। उसने कई मौक़ों पर अपनी पसंदीदगी का इजहार भी वाज़ेह तौर पर किया था, मगर फिर भी हुरैन के दिल में उसके लिए कोई ख़ास जगह नहीं बन सकी। पता नहीं क्यों बहुत सारे आम से लोगों में वो भी बस आम सा ही शख्स लगता था। और इदा का कहना था कि तल्लुक़ बनने से वो खुद बहुत ख़ास हो जाएगा, लेकिन उसके दिलो दिमाग में से कोई भी ये लॉजिक मानने को तैयार नहीं था। घर पहुंचकर भी वो इन सोचों को अपने सर से नहीं झटक सकी। गाड़ी पोर्च में खड़ी करने के बाद उसका रुख अपने कमरे की तरफ था जब मुलाजमा ने उसका रास्ता रोक लिया। सलाम हुर एन बीबी, आपके मेहमान आए हुए हैं। मेरे मेहमान? उसे हैरत हुई। रात के 10:30 हो रहे थे। जी, एक लड़की और लड़का है, 3 घंटे से बैठे हैं। व्हाट, 3 घंटे से? मम्मा और पापा तो घर पर ही थे, उनसे मुलाकात करवा देती।
ड्राइंग रूम की तरफ कदम बढ़ाते हुए उसने कहा, नहीं जी, वो कह रहे थे उन्हें आपसे ही मिलना है। हैरत है। वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो वहाँ दो अजनबी चेहरे उसके मुंतज़िर थे। उसे देखते ही वो खड़े हो गए थे। उनकी नज़रों में उतरती सताइश उससे छुपी नहीं रह सकी। हुरैन के लिए आम रूटीन में भी ये सताइश वसूल करना मामूल की बात थी। इस वक्त तो वो शादी के फंक्शन से वापस आ रही थी। वो डार्क पर्पल कलर की पाँव को छूती मैक्सी में मलबूस थी, जिसके दामन, बाजू और गले पर बेहद नफीस सा काम था। लाइट पर्पल कलर का दुपट्टा उसके बाएं कंधे पर पड़ा था, जबकि पाँव में पर्पल कलर के ही काम वाले खुस्से थे। लाइट से मेकअप में स्याह लंबे सिल्क प्रेस बाल खोले वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि देखने वाले की निगाह पलटने से इनकारी हो जाए। इसमें कोई शक नहीं था कि वो हसीन थी। साफ रंगत, बैजवी चेहरा, लंबी पलकों वाली बड़ी बड़ी आंखें, सितवा नाक, खूबसूरत होंठ, लंबी गर्दन, मुतनासिब कद काठ। मगर इसके साथ उसके वक्त का एक अहम हिस्सा अपना ख्याल रखने में गुजरता था। और वक्त का ये सिर्फ ऐसा ही कोई ज़िया नहीं था। सर के बालों से पैर के नाखूनों तक उसकी हर चीज़ अपनी जगह पर परफेक्ट नज़र आती थी। अस्सलामुअलैकुम, उसकी आवाज़ में एक जल्द रंग था। वालेकुम अस्सलाम, लड़की पहले हवासों में लौटी। गंदमी रंगत और मुनासिब शक्ल सूरत की मालिक वो लड़की स्याह और सफ़ेद रंग की प्रिंटेड शलवार कमीज़ में मलबूस थी। स्याह दुपट्टा उसने सलीके से सर पर रखा हुआ था। मेरा नाम सामिया है और ये मेरा कज़न इबाद है। हम लोग जेहलम से हैं। प्लीज़ बैठें आप लोग। वो दोनों अभी तक खड़े थे। उनके सामने सोफे पर बैठते हुए हुरैन ने उन्हें भी बैठने का कहा। आई एम सॉरी, आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रही आपको, इसलिए कि क्योंकि हम पहली बार मिल रहे हैं। वो दोनों बैठ चुके थे और ये जवाब उस लड़की की जानिब से आया। माज़रत ख़्वाह तो हम लोग हैं कि बिना बताए ही यूँ चले आए। दरअसल मुझे डर था कि अगर हम लोग आपसे इजाज़त मांगेंगे तो आप इनकार कर देंगे। किस सिलसिले में आप लोग मिलना चाह रहे थे मुझसे? हुरैन के अंदाज में शाइस्तगी थी। हम लोग दरअसल, वो जो हशाम अहमद है ना, वो मेरे चाचू हैं। वो पता नहीं क्या कहना चाह रही थी। हम लोग हशान मामू से मुतल्लिक बात करने आए हैं आपके पास। काफ़ी देर से खामोश बैठे लड़के ने लब कुशाई की। वो दोनों हम उम्र ही लग रहे थे और उनकी उम्र कमोबेश 19-20 साल के करीब लग रही थी। हशाम अहमद। उसने अपनी याददाश्त को खंगालने की कोशिश की, मगर इस नाम का कोई शख्स उसके जहन में नहीं आ रहा था। आई एम सॉरी, मैं किसी हशाम अहमद को नहीं जानती। क्या? सामिया के चेहरे पर बेयकीनी और दुख था। ऐसे कैसे हो सकता है? अब बात के चेहरे पर भी सामिया से मिलते जुलते तासुरात ज़ाहिर हुए। आप हशाम चाचू को कैसे नहीं जानती? अब तो इतने फेमस भी हो गए हैं वो। सामिया के लिए यकीन करना मुश्किल था। और आपके तो वो यूनिवर्सिटी फ़ेलो भी थे। अब्बाद ने एक और क्लू दिया, मगर हुरैन के जहन में इस नाम से वाबस्ता कोई शबी नहीं उभर रही थी। मुझे ग्रेजुएट हुए भी अब काफ़ी साल हो गए हैं। मुझे तो सारे क्लास फ़ेलोज़ भी शायद याद ना हो। आप लोग यूनिवर्सिटी की फ़ेलो की बात कर रहे हैं। उसे उनका मुतालबा समझ नहीं आया। हशाम चाचू तो आप ही के डिपार्टमेंट से थे, साइकोलॉजी में थे, और वो आपसे सीनियर थे 2 साल। सामिया ने याद कराने की कोशिश की। अब तो उनकी 2 किताबें भी आ चुकी हैं शायरी की, आपको नहीं पता? ये कोशिश ही बात की तरफ से थी। नहीं, मेरा शायरी वगैरह में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं। उसकी बात पर उन दोनों के चेहरों पर वाज़ेह मायूसी उतरी थी। लेकिन आप लोग बात क्या करना चाह रहे हैं? उसे खुद भी एकदम तजस्सुस हुआ। आखिर ऐसी क्या बात थी जो वो लोग 3 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे? हम आपसे हशाम चाचू के बारे में बात करने आए थे। सामिया का अंदाज़ अब बुझा हुआ सा था। वो आपको यूनिवर्सिटी के ज़माने से पसंद करते हैं। उन्होंने आपको नहीं बताया, लेकिन उनकी हर तहरीर में आपको अपना आप नज़र आएगा। उनकी किताबें अगर आप लेना चाहें तो मार्केट में मौजूद हैं। ये उनके कुछ लेटर्स हैं जो उन्होंने आपके लिए लिखे, मगर आपको दे नहीं सके। अपने बैग से कागज़ का खाकी लिफाफा निकाल कर उसने हुरैन की तरफ बढ़ाया। हुरैन ने कुछ हिचकिचाते हुए उसे थामा। सामिया के इंकशाफ पर वो नॉर्मल ही रही। उसका ये नॉर्मल अंदाज इन दोनों की मायूसी में इजाफा कर गया। मुझे पहली नज़र में बेहद अच्छी और शाइस्ता लग गई थी, अब एकदम बहुत दूर और गैर महसूस हो रही थी। सामिया का दिल किया कुछ भी कहे बिना उठ जाए, लेकिन इस लम्हे को हासिल करने के लिए उसने बहुत जतन किए थे। वो उसे ज़ाया नहीं कर सकती थी, सो उसने अपनी बात जारी रखी। चाचू के रूम की सफाई करते हुए, ये लेटर्स मेरे हाथ लगे थे। पूरे 1 साल की कोशिश के बाद मैं आप तक पहुंचने में कामयाब हुई। चाचू आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो बहुत अच्छे, बहुत गहरे इंसान हैं। मुझे लगा वो शायद खुद आपसे कभी ये सब कह नहीं सकेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में आपको पता चलना ज़रूरी है कि आप कितनी खुशकिस्मत है, और चाचू भी डिज़र्व करते हैं कि उनकी सच्ची मोहब्बत रायगा ना जाए। हुरैन इस सारे किस्से से बिल्कुल भी मुतासिर नहीं नज़र आ रही थी। ये मेरा नंबर है, अगर आप कभी चाचू से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे तो। उसने एक चिट उनकी तरफ बढ़ाई उसकी तरफ बढ़ाई। मैं तुम लोगों को हर्ट नहीं करना चाह रही, लेकिन शायद इसकी ज़रूरत न पड़े। अब की बार उसने लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। अब प्लीज़ रख तो लें, मेरी तसल्ली हो जाएगी। उसके अंदाज में इसरार था। हुरैन ने चिट उसके हाथ से लेकर उसी खाकी लिफाफे में डाल दी। इजाज़त दें, अब हम लोग निकलेंगे, सामिया कहते हुए उठ खड़ी हुई। इबाद ने भी उसकी पैरवी की थी। तुम लोग चाय वगैरह? उसने मेहमान नवाजी के तकाजे निभाने चाहिए। आपकी मुलाजमा ने पिला दी थी चाय, बहुत शुक्रिया। तुम लोग आई थिंक जेहलम का बता रहे थे, अभी तो काफ़ी रात हो गई, कैसे जाओगे?
हम लोग कुछ दिनों के लिए यहाँ अपने रिलेटिव्स के यहाँ आए हुए हैं, एक तकरीब के सिलसिले में, तो अभी हमने शहर से बाहर नहीं जाना। ये जवाब इबाद की तरफ से आया था। चलो दैट्स गुड। वो लोग चले गए और वो पुरसोच नज़रों से इस खाकी लिफाफे को देख रही थी। हशाम अहमद, उसने एक बार फिर जहन पर जोर दिया, मगर बेसूद। उसने इन लोगों की फहरिस्त जहन में दोहराई जिन्होंने यूनिवर्सिटी में उसे अप्रोच किया था और अपनी पसंदीदगी का इजहार किया था, मगर इनमें हशान अहमद नाम का कोई शख्स नहीं था। सर झटक कर वो उठ गई। पता नहीं कौन है, और ये शायर वायर तो वैसे ही फारिग लोग होते हैं, देख लिया होगा उसने यूनी में कहीं। सिल्की बालों की आबशार एक तरफ डालते हुए वो बुड़बुड़ाती हुई बाहर निकल गई। खाकी लिफाफा वहीं सोफे पर पड़ा रह गया। एक तो मुझे तुम्हारी इस जॉब की वजह समझ नहीं आती। नाश्ते की टेबल पर पापा ने अपने कई दफ़ा की किए हुए एतराज़ को फिर से ज़बान थी। अगर तुम कुछ करना ही चाहती हो तो अपना बिजनेस क्यों ज्वाइन नहीं कर लेती? इस बेतुकी जॉब का फ़ायदा। मामा भी इस मौजू पर पापा से पूरी तरह मुतफिक थी। जूस के सिप लेते हुए वो इकलौती औलाद को तनकीदी नज़र से देख रही थी, जबकि पापा उन्हें ट्रिगर करके अखबार में मसरूफ़ हो चुके थे। मामा, मैं अपनी जॉब को एंजॉय करती हूँ, इससे ज़्यादा और क्या फ़ायदा लेना है मुझे? अंडे से इंसाफ करते हुए उसके लहजे में तमानियत थी। स्काई ब्लू कलर के लिबास में वो बेहद फ्रेश दिखाई दे रही थी। इंजॉयमेंट का बस यही एक तरीका रह गया है। मुझे नहीं पसंद तुम्हारा किसी के यहाँ नौकरी करना है। इस सारी जायदाद की तुम इकलौती वारिस हो और चंद हज़ार की नौकरी के लिए तुम ख्वार होती फिर रही हो। मामा, इट्स नॉट एग्जैक्टली नौकरी। हम एक टीम की तरह काम करते हैं, इसी काम को एंजॉय करते हैं। जिस मुकाम पर आज हमारा इंस्टीट्यूट है वो सारी हम टीम की मेहनत का नतीजा है। हालांकि ओनर रज़ा है, मगर वो ये बात बखूबी जानता है और सारी टीम की कोशिशों का एहतराम करता है। रज़ा नो डाउट एक ज़बरदस्त आदमी है, लेकिन मुझे लगता था कि तुम्हारा जॉब का शौक अब पूरा हो गया होगा। 3 साल अच्छा खासा टाइम होता है। अखबार की सुर्खियाँ देखने के बाद पापा ने उसे तह करके साइड पर रखा। शुरू में सिर्फ शौक था पापा, मगर अब एक ऑनरशिप है। मैंने अपनी आंखों से इस इंस्टीट्यूट को ग्रो करते देखा है। 3 साल पहले ये सिर्फ घरेलू खतबातीन के लिए एक छोटा सा फिनिशिंग स्कूल था, मगर आज इसका एक नाम है जहाँ हर उम्र और प्रोफेशन के लोग ग्रूमिंग के लिए आते हैं और बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होकर निकलते हैं। मुझे ऐसे लोगों के दरमियान रहना अच्छा लगता है जिनका ग्रोथ माइंड सेट होता है, और उनकी ग्रोथ का प्रोसेस मेरे लिए बहुत दिलचस्प होता है। अंडा ख़त्म करने के बाद अब वो चाय ले रही थी। चलो, अगर तुम्हारी दिलचस्पी बरकरार है तो ये अच्छी बात है। कहते हुए उन्होंने रिस्ट वॉच पर नज़र डाली। मैं निकल रहा हूँ। आपका क्या प्रोग्राम है? उठते हुए वो अपनी बेगम से मुखातिब हुई, जो नक्सक से तैयार बैठी थी। आज मैंने ऑफिस नहीं आना, रिहाना की तरफ जाऊंगी, उसकी एनजीओ का एक फंक्शन है। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़। कहते हुए वो निकल गए थे। और सुनाओ, हिबा की शादी का फंक्शन कैसा रहा? कल के मेहमान भी आए हुए थे तुम्हारे, काफ़ी देर वेट करते रहे। पापा के निकलने के बाद पूरी तरह मामा उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। हाँ, ऐसे ही, वो किसी यूनिवर्सिटी फेलो के रेफरेंस से आए थे। चाय की सिप लेते हुए उसने लापरवाही से कहा। और हिबा की शादी का फंक्शन बहुत अच्छा था, बहुत प्यारी लग रही थी वो। जितनी भी तुम्हारी उम्र की लड़कियां थी तकरीबन सबकी शादियां हो गई या हो रही हैं। उनका गम फिर से ताज़ा हो गया। तुम पता नहीं किसके इंतज़ार में बैठी हुई हो। किसी का इंतज़ार नहीं है मामा, जब होनी हुई हो जाएगी। आपने क्यों शादी को सर पर सवार किया हुआ है? कोई मुकाबला थोड़ी है कि मेरी उम्र की सारी लड़कियों की शादी हो गई तो अब जो भी ढोल मुझे नज़र आए मैं भी उसे गले में डालकर बजाना शुरू कर दूँ। कोई भी क्यों, अहमद लाखों में एक है। किस चीज़ की कमी है उसमें? मुझे तो तुम्हारे इनकार की वजह समझ नहीं आती। रिदा को भी बोला था मैंने कि तुम्हें समझाए, पता नहीं क्या कीड़ा समा गया है तुम्हारे दिमाग में। ममा, बात कमी या ज़्यादती की नहीं है। इसमें हज़ार खूबियाँ होंगी, मगर इनमें एक भी ऐसी खूबी नहीं है जो मुझे मुतासिर कर सके। जो कुछ उसके पास है वो सारा कुछ मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। वो तुम्हें पसंद करता है कि ये बात भी तुम्हें मुतासिर नहीं करती? उन्होंने बेयकीनी से अपनी बेहद हसीन बेटी को देखा। नहीं, कई लोग मुझे पसंद करते हैं। अब मैं सबसे मुतासिर हुआ करूं बैठकर। उसके लहजे में वही महसूस बेनियाजी थी। मुझे लगता है तुम्हारी तरबियत में हमसे कमी नहीं बल्कि बहुत सारी ज़्यादतियाँ हुई हैं। तुम्हें हर चीज़ इतनी फरावानी में मिली है कि तुम्हें अब किसी चीज़ की कदर ही नहीं, ना किसी चीज़ की, ना किसी रिश्ते की, ना किसी एहसास की। उनके अंदाज में दुख था। ऐसा नहीं है मामा, मेरी कल रिदा से भी बात हुई। वो अहमद के बारे में सोच रही हूँ मैं। जल्द ही आप लोगों को फाइनल जवाब दूंगी। कहते हुए वो उठ खड़ी हुई। अच्छा, अब निकलती हूँ मैं, बाय। साथ वाली कुर्सी से अपना बैग उठाकर वो बाहर निकल गई। वो अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोल रही थी जब कल वाली मुलाजमा भागती हुई उसकी तरफ आई। हुरैन बीबी, आपके मेहमानों की चीज़ें रह गई थी ड्राइंग रूम में। उसके हाथ में वही खाकी लिफाफा था। ओह, ये मेरा है, इसे मेरे कमरे में रखो। गाड़ी में बैठते हुए उसने कहा था। एक बार फिर उसके जहन में रात वाला वाक़या ताज़ा हुआ। हशाम अहमद। गाड़ी स्टार्ट करते हुए वो इसी बारे में सोच रही थी। चौकीदार पहले ही गेट खोल चुका था। जब वो गेट से निकली, वो गेट के दाएं जानिब खड़ा उसके निकलने का इंतज़ार कर रहा था। ये नया चौकीदार था जो हाल ही में रखा गया था। वो गंदमी रंगत, लंबे कद, दुबले पतले जिस्म का मालिक, एक आम सी शख्सियत जो 10 लोगों के दरमियान महसूस भी ना हो। उसे देखकर यकदम हुरैन के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ।
हशाम अहमद, लिटरेरी सोसाइटी, ओ माय गॉड, ये वो वाला हशाम अहमद है। डैशबोर्ड से ग्लासेस उठाकर आंखों पर लगाते हुए न जाने क्यों से हंसी आई। हशाम अहमद की छवि अब उसके जहन में साफ आ रही थी। गंदमी रंगत, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म और हाथ से फ्रेम वाला नज़र का चश्मा भी उसे याद आया, और संजीदा सा चेहरा भी। वो यूनिवर्सिटी की लिटरेरी सोसाइटी में खासा मकबूल था, लेकिन उसकी तो सारी ज़िंदगी उससे कोई बात नहीं हुई। ना उसने कभी कोई दिलचस्पी जाहिर की, ना हुरैन को उसमें कभी कोई दिलचस्पी महसूस हुई। अब भी जो इस खाकी लिफाफे के साथ थोड़ा बहुत तजस्सुस जुड़ा था, हशाम अहमद के बारे में याद आते ही उसकी हवा भी यकदम निकली थी। ओह, तो वह मेरे नाम लेटर्स लिखता रहा है, हाउ फनी। इस चमकीली सुबह इस्लामाबाद के शाहराहों पर गाड़ी दौड़ाते हुए उसके लबों पर एक महजूज कुन मुस्कुराहट थी। मुझे ये बात रिदा और हिबा को भी बतानी चाहिए, उन्हें यकीन नहीं आएगा। यह वाहिद लाया अमल था जो हशाम अहमद या उसके लेटर्स को लेकर उसके दिमाग में आया था। एक जोरदार घूंसा उसके अंदर को धंसे हुए दाएं गाल पर पड़ा। तुम कौन हो? स्याह लिबास में मलबूस ऑफिसर उसके सर पर खड़ा धार रहा था, लेकिन उसने लब सी रखे थे। जिसे ऑफिसर के तैश में इजाफा हुआ था, उसने उसे एक जोरदार ठोकर मारी। वो जो कुर्सी के साथ बंधा हुआ था, वो कुर्सी समेत औंधा हुआ। सर में पहले ही दर्द की टीसें उठी हुई थी, और फिर कुछ नम सा महसूस हुआ, एक नमी जो कनपट्टी से लकीर सी बनाती हुई कान तक आ पहुंची। ऑफिसर पंजों के बल उसके पास बैठा था। कौन हो तुम? उसके बाल मुट्ठी में दबोचे वो एक एक लफ्ज़ चबाकर बोल रहा था। मुझे खुद नहीं पता। उसके लहजे में बेबसी थी, एक दर्द भरी बेबसी। मामा प्लीज़, इस तरह की पार्टी इसके लिए मुझे फोर्स मत किया करें, शदीद बोर होती हूँ मैं वहाँ जाकर। वो अपने बेड पर नीम दराज उकताए हुए लहजे में कह रही थी। कमरे में नीम अंधेरा था, शाम का वक्त था। अंधेरे में अभी अपने पर नहीं फैलाए थे, मगर उसके कमरे की खिड़की पर भारी पर्दे पड़े हुए थे। लाइट ऑफ थी। बेड के सामने वाली दीवार पर अवेजा एलसीडी वगैरह आवाज़ के चल रही थी, और इसी की स्क्रीन की रोशनी कमरे में फैली हुई थी, जो कभी कम हो रही थी, कभी ज़्यादा। मुझे समझने की कोशिश करो मेरी जान, अगर ये तुम्हारे चचा की पार्टी ना होती तो मैं कभी तुम्हें यूं फोर्स ना करती। तुम अपनी मर्ज़ी से नहीं जाती, लेकिन वहाँ तुम्हारी पुप्पो, ताया और चचा के सामने मुझे जवाब देना होना पड़ता है। उन्हें लगता है मैं तुम्हें तुम्हारे दुधिहाल से दूर कर रही हूँ, क्योंकि तुम अपने निहाल नहाल का कोई इवेंट भी तो मिस नहीं करती कभी। उन सब की बातों से तुम्हारे पापा भी बदजन हो जाते हैं, कई दिन तक उनका मूड ठीक नहीं रहता। स्याह साड़ी में मलबूस उसके बेड के सामने खड़ी वो इसे समझाने की कोशिश कर रही थी। ममा, आपको पता है कि बात न निहाल या दुधाल की नहीं, बात मेरे कंफर्टेबल होने की है। फूफो, ताया और चचा में से किसी के बच्चों के साथ कभी भी मेरी नहीं बन सकी। अजीब सी नेगेटिविटी है उनके अंदर, मैं उनके साथ अच्छा फील नहीं करती, और अकेली मैं शदीद बोर होती हूँ पार्टीज़ में। सीधा होकर बैठते हुए उसने अपने बाल समेट कर जूरे की शक्ल में लपेटे। मैं समझती हूँ ये सब, मगर बाकी लोग नहीं समझते। ये पार्टी तुम्हारे चचा ने अपनी नई फैक्ट्री की खुशी में दी है। आधा शहर इनवाइटेड है। तुम्हारी गैर मौजूदगी पर सब बहुत बातें बनाएंगे, जब तुम कहीं मसरूफ़ भी नहीं हो। संडे है आज, सुबह से फारिग घर में बैठी हो। वो आकर उसके सामने बैठी। एक तो पता नहीं आप लोगों को क्यों इतना सर पर सवार करती हैं। उसके अंदाज में बेजारी थी। हुरैन, मेरा बच्चा, चलो उठ जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ अपनी मामा के लिए। उसका हाथ थाम कर उन्होंने नहायत मोहब्बत भरे लहजे में कहा। मामा, जल्दी वापस आ जाना मेरी जान, ज़्यादा देर बेशक नहीं रुकना। उनके अंदाज में शरीनी घुली हुई थी। मैं सिर्फ आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी। ठीक है, और आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगी, खुद से आऊँगी कुछ देर तक। ठीक है, लेकिन आना ज़रूर, उसकी शर्त मानते हुए उन्होंने ताकीद की। जाहिर है जब कह दिया तो आऊँगी। चलो फिर, मैं और तुम्हारे पापा निकल रही हैं। वो उठ खड़ी हुई थी। उनके कमरे से निकलने के बाद वो भी उठकर बैठ गई। क्या मुसीबत है, अच्छी भली मूवी देख रही थी मैं। सुबह से अपने कमरे में घुसी वो अच्छी खासी सुस्त हो रही थी। कहीं भी जाने का मूड नहीं हो रहा था, लेकिन जाना तो था। बुरे बुरे मुंह बनाती वो बेड से उठकर वार्डरोब के सामने आ खड़ी हुई। अब क्या पहन कर जाऊँ इस फजूल पार्टी में? अंधेरी कोठरी में गर्दिश करता सवाल उसके अंदर उतर रहा था। मैं कौन हूँ? मैं ये चेहरा हूँ, मैं ये जिस्म हूँ मैं, लेकिन ये चेहरा, ये जिस्म दिन ब दिन अपनी साख्त खो रहा है। क्या मैं खो रहा हूँ? उसने जहन के सामने सवाल रखा, लेकिन वहाँ ऐसी खामोशी, सुकूत था जिसमें नफी या बात नहीं था, बल्कि एक तकद्दुस था। इस तकद्दुस की चादर ओढ़े वो जहन की सतह से एक कदम नीचे उतर आया। वहाँ एक नई दुनिया थी, महसूसात की दुनिया। जो एहसास दिला रही थी वो खो नहीं रहा, बल्कि कुछ पा रहा है, कुछ ऐसा एहसास जो उसके पास पहले नहीं था। मेरा जिस्म खो रहा है, लेकिन मैं नहीं खो रहा। इसका मतलब है मेरा जिस्म नहीं, मैं मेरा जिस्म नहीं हूँ। जिस्म मादी चीज़ है। मैं हमेशा से सुनता आ रहा हूँ, इंसान जिस्म से भरकर होता है। मैं अपनी सोच हूँ। यकदम उसे नया सिरा मिला। सोच? उसने इस नए सिरे को सामा। मैं सोच हूँ, लेकिन सोच क्या होती है? सोच कुछ नहीं होती, सोचें होती हैं। एक वो सोचें जो बिन बुलाए मेहमान की तरह दिलो दिमाग में बसेरा कर लेती हैं, और एक वो सोचें जिन्हें हम खुद दावत देते हैं। एक वो सोचें जो थकान देती हैं, एक वो सोचें जो राहत देती हैं, एक वो सोचें जो बेमकसद किसी झोंक की तरह दिमाग से लिपटी रहती हैं, और एक वो
सोचें जो बामकसद और मुनज़्ज़म होती है। मैं कौन सी सोच हूँ, बेमकसद या बामकसद? मेरा नुक्ता आगाज़ क्या है? ये नुक्ता कहीं मेरे अंदर है या ख़ारिजी है? उसने एक बार फिर ज़हन के सामने सवाल रखा। वहाँ एक बार फिर खामोशी थी। खामोशी, बिल्कुल खामोशी। एक लम्हे के लिए ऐसी खामोशी छाई जहाँ किसी सोच का भी गुज़र नहीं था। ऐसे लम्हे होते हैं जहाँ कोई सोच नहीं होती। अगर मैं सोचूँ तो जब सोच नहीं होती तो मुझे भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं होता हूँ, इस लम्हे को महसूस करता हूँ जहाँ कोई सोच नहीं होती। मैं सोच नहीं, मैं वो हूँ जिससे सोच उभरती है। वो क्या है जिसमें सोच उभरती है? मैं क्या हूँ? ठंडे फर्श पर सीमट उखड़ी दीवार के साथ टेक लगाए बैठा वो खुद से सवाल कर रहा था। ऐसा सवाल जिस पर पिछले 30 साल से पर्दा पड़ा हुआ था। वक्त ने सारे के सारे पर्दे बेरहमी से उतार फेंके थे। अब पूरी कायनात उससे यही सवाल पूछ रही थी जो उसने खुद अपने आप से कभी नहीं किया था। हालांकि करना चाहिए था। इतना बुनियादी सवाल था ये। मैं था क्या? हाल में जवाब ना पाकर उसने माजी में छलांग लगाई और फिर उसे याद आया एक वक्त था जब वो तलब, सरापा ख्वाहिश, ऐसी ख्वाहिश जो उसके अंदर की गहराइयों से निकलती थी, जो उठते बैठते सोते जागते उसके साथ रहती थी, जिसके मिलने का ख्याल जिस्म को राहत बख्शता था, जिसकी खुशबू से सोचें महकती थी, जिससे वसाल की उम्मीद, हर ख्वाहिश, हर जज्बे में नए रंग भरती थी। वो तलब, वो ख्वाहिश, वो जज्बा जिसे दुनिया मोहब्बत कहती है, वो मोहब्बत जिसका महवर एक इंसान की ज़ात होती है, ऐसी ही ज़ात जिससे पूछा जाता है तुम कौन हो? कभी वो कहती है मैं जिस्म हूँ, कभी कहती है मैं सोच हूँ, कभी कहती है मैं तलब हूँ, मैं ख्वाहिश हूँ, मैं प्यास हूँ। मेरी तशनगी अज़ल से है और इस तशनगी का मौजब एक ही ज़ात है, फ़कत एक ही ज़ात। डार्क ग्रीन कलर की कोट स्टाइल श्रग के अंदर लाइट ग्रीन कलर की प्लेन स्ट्रेट शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस वो एक कॉर्नर टेबल पर बैठी अपने फ़ोन में मसरूफ़ थी। उसे आए अभी सिर्फ 10 मिनट हुए थे। 20 मिनट उसने यहाँ मज़ीद गुजारने थे और फिर उसने निकल जाना था। हेलो का बिल्कुल उसके सर पर आ खड़ा हुआ। उसने नागवारी से नज़र उठाकर देखा। अहमद सदीक के लबों पर खुश दिलकश मुस्कुराहट फैलाए उसके सामने खड़ा था। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। उसकी नज़रों की नागवारी उसने जांच ली थी। तभी गर्दन पर हाथ फेरता वो शर्मिंदा सा नजर आया। कोई भी जवाब देने के बजाय वो सवाली नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। बैठ सकता हूँ यहाँ? उसके सामने पड़ी कुर्सी की बैग पर हाथ रख के वो इजाज़त तलब नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। बैठ जाएं? कुछ सोचकर उसने जवाब दिया और फिर फ़ोन बंद करके सामने टेबल पर रख दिया। अब वो पूरी तरह से उसकी तरफ मतवज्जा थी। उसकी इजाज़त मिलते ही उसने कुर्सी संभाली। लगता है पार्टी में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इधर उधर खुशगपी में मसरूफ़ लोगों पर नज़र डालकर उसने कहा, जी ऐसा ही है कुछ। सीने पर हाथ बांधकर वो टेक लगा कर बैठी थी। अहमद की नज़रें उसके चेहरे पर ठहरी थी और कुछ लम्हों के लिए साकत हो गई। खिलाफ मामूल उसने आज आंखों में काजल लगा रखा था और स्याह बालों के सिरे कर्ल किए हुए थे। उसकी साफ रंगत गहरे रंगत के लिबास में नुमाया हो रही थी। अच्छी लग रही हैं आप, बल्कि ये कहना चाहिए कि हमेशा अच्छी लगती हैं आप। वो जैसे मेस्मराइज सा था। शुक्रिया। उसने अपनी मखसूस बेनियाजी के साथ तारीफ़ वसूल की। आंटी से पता चला कि आप रज़ा भाई के इंस्टीट्यूट में जॉब कर रही हैं। कैसी जा रही है आपकी जॉब? बहुत अच्छी। रज़ा भाई के साथ काम करना यकीनन एक बहुत अच्छा तजुर्बा होगा आपके लिए। उनका छोटा भाई फ़िदा मेरा क्लास फेलो था। उनके यहाँ मेरा काफ़ी आना जाना होता था और रज़ा भाई से भी अच्छी खासी सलाम दुआ थी। बहुत दिलचस्प आदमी है वो। बिल्कुल ऐसा ही है। अब तो काफ़ी ग्रो कर गया है आपका इंस्टीट्यूट। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ऑफ़र करते हैं आप लोग। आप इंस्ट्रक्टर हैं? जी। किस प्रोग्राम में? कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग के प्रोग्राम में। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कम्युनिकेशन वाकई एक आर्ट है। बिजनेस स्टडीज़ में भी इस पर बहुत फोकस किया जाता है। मैंने इंग्लैंड में एक कोर्स किया था कम्युनिकेशन स्किल्स पे। दूसरा लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में शुरू किया था किसी ज़माने में, मगर वो अधूरा रह गया और फिर बात से बात निकलती चली गई। ये वो मौजूद था जिसमें हुरैन वाकई इंटरेस्टेड थी। 20 मिनट के बजाय वो 1 घंटे के बाद उठी। उठने से पहले इन दोनों के दरमियान फ़ोन नंबर्स का तबादला हो चुका था। वो रात खामोश थी। हालांकि तारों ने बड़ी चाह से फलक की स्याह चादर पर महफिल सजाई थी। चांद ने भी उस महफिल की रौनक बढ़ाने की अपनी सी कोशिश की, लेकिन झिलमिलाती रोशनियों में घिरे स्विमिंग पूल के किनारे सीढ़ियों पर बैठी उस लड़की के दिलो दिमाग पर भारी बोझ था। सौरात की तमाम तर खूबसूरती उसके लिए बेमानी थी। ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं? उसने चेहरा हाथों में छुपाया हुआ था। स्याह सिल्की बाल उसके वजूद के गिर्द हिसार बना रहे थे। इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कैसे कर सकती हूँ मैं? गहरा पछतावा उसके नम लहजे में बोल रहा था। कैसे सामना करूंगी मैं सर का? क्या कहूंगी कि इतनी अहम जिम्मेदारी जो मैंने इतनी ज़ोको शौक से उठाई थी, इसमें मुकम्मल नाकाम हो गई हूँ। हो माई गॉड, इतनी अहम फाइल कैसे गुम कर सकती हूँ मैं? उसके असाब शदीद किस्म के तनाव का शिकार थे। आने वाले वक्त का ख्याल उसे बेचैन किए हुए था। अस्सलामुअलैकुम जी। वो उसके सामने आकर खड़ा हुआ। क्या है? उसने एक झटके से सर उठाया। अंदाज में नागवारी थी। जी ये फाइल। उसके हाथ में नीले कवर वाली फाइल थी। ये किधर से मिली तुम्हें? उसने उसके हाथ से फाइल झपटती थी। यकदम ढेरों बोझ उससे अपने कंधों से सिरकता महसूस हुआ।
वो जी चौकीदार किसी काम से बाहर गया तो उसने मुझे गेट पर बैठने को कहा। कोई बंदा आया था बाइक पर, उसने दी थी कि आपको दे दूं। माली वजाहत दे रहा था। ये कब की बात है? यही जी कोई असर की। और तुम अभी दे रहे हो मुझे? तुम्हें अंदाज़ा है कुछ कि कितनी परेशान थी मैं इसके लिए? उसका अंदाज गुस्सीला था। माजत खां हूँ जी, वो कहकर मुड़ गया। सुनो, उसने पीछे से पुकारा। जी। वो एक बार फिर हाथ बांधे उसके सामने खड़ा था। जिस शख्स ने यह फाइल दी उसने अपने बारे में कुछ बताया नहीं? नहीं जी। किस तरह का हुलिया था उसका? इतना गौर नहीं किया मैंने जी। बाइक पर था, आम सा ही था, कुछ खास नहीं था। वो जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। हेलमेट पहना हुआ था उसने? जी। हूँ। वो किसी और सोच में गर्क हो चुकी थी। मैं जाऊँ जी? वो भूल चुकी थी कि वो खड़ा है। हाँ जाओ। वो यकदम हाल में लौटी। आज हम मॉड्यूलेशन वॉइस पर बात करेंगे। बेबी पिंक और ग्रे कलर के लिबास में मलबूस वो हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रही थी। क्लास में मौजूद लोगों की तवज्जो हासिल करने में उसे कभी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। इस वक्त भी इन 15 लोगों की नज़रें उस पर जमी थीं। मॉड्यूलेशन वॉइस यानी हम अपनी टोन, पिच, आवाज़ पर दबाव और बोलने की स्पीड से किस तरह अपने पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा मौसर बना सकते हैं। उसकी आवाज़ खूबसूरत थी, उसके बोलने का अंदाज दिलकश था। वहाँ मौजूद कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं था जो ये लबो लहजा अपनाना ना चाहता हो। हमेशा की तरह पहले ही हम डिस्कशन करेंगे, वीडियोस देखेंगे, फिर प्रैक्टिस सेशंस होंगे और फिर एग्ज़ाम। वो कमरा क्लासरूम की तर्ज पर बना हुआ था। उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले वो 15 लोग उसके सामने कुर्सियों पर बैठे थे और वो उनके सामने बना ज़रा ऊंचा प्लेटफार्म पर चलते हुए बात कर रही थी। प्लेटफार्म के दाएं कोने पर रोस्ट्रम रखा हुआ था और इसके पीछे दीवार पर प्रोजेक्टर की डिस्प्ले शीट लगी हुई थी। डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों में से कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना कर सकता है जिससे ज़ाहिर हो कि मॉड्यूलेशन वॉइस क्यों ज़रूरी है। रोस्ट्रम पर दाएं कोने टिकाकर वो खड़ी हुई थी। हाँ, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। एक कम उम्र से लड़की थी। मेरे फिजिक्स के टीचर पढ़ाते हुए हमेशा एक ही ट्यून में बात करते हैं और जब वो पढ़ा रहे होते हैं तो पूरी क्लास सो रही होती है। उसकी बात पर दबी सी हंसी उभरी। तभी रोस्ट्रम पर पड़े उसके फ़ोन की बेल बजी। अहमद कॉलिंग। कॉल करते करते न जाने क्या सोचकर उसने उठा ली। क्लास में डिस्कशन स्टार्ट हो रही थी तो फ़ोन लिए कमरे से बाहर निकले। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। अहमद बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मैं रज़ा भाई से मिलने आया था। तुमसे हो सकती है मुलाकात। कहाँ हो अभी तुम? रज़ा भाई के ऑफिस में। ऐसा है अहमद कि मेरी अभी एक क्लास चल रही है। कब तक है तुम्हारी क्लास? अभी 35 मिनट बाकी है। मैं वेट कर लेता हूँ। देख लो, अच्छा खासा टाइम है। कोई नहीं, मैं रज़ा भाई से गपशप लगाता हूँ। लेकिन तुम्हारी क्लास ख़त्म हो जाए तो लंच पे चलेंगे। बाहर? बाहर क्यों? इसके बाद तो तुम फ्री हो ना? चलो ठीक है। 1 घंटे के बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। लंच के बाद वो लोग लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। एक भरपूर शाम गुजारने के बाद जब वो घर आई तो उसका अहमद सिद्दीकी के बारे में नुक्ता नज़र काफ़ी हद तक बदल चुका था। इतना भी ऑर्डनरी नहीं था वो, खासी दिलचस्प शख्सियत का मालिक था। देखो प्लीज़ बता दो मुझे कि तुम कौन हो। आज इस ऑफिसर के लबो लहजे में बेचारगी थी। तुम्हें अंदाज़ा नहीं ये जानना मेरे लिए कितना ज़रूरी है। उसके सामने कुर्सी पर बैठा वो जैसे आखिरी हर बार आजमा रहा था। मेरे कैरियर का, मेरी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी का सवाल है। उसके अंदाज में वाकई इल्तिजा उतरी थी। तुम्हारा ये छुपाना तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला। तुम अपनी ज़िंदगी के 7 साल, 7 कीमती साल ज़ाया कर चुके हो। तुम जिस्मानी तौर पर तकरीबन नाकारा हो चुके हो। शदीद किस्म के तशद्दुद से गुजरने के बाद तुम्हारी ज़हनी इस्तेदाद भी अब कभी भी पहले जैसी नहीं होगी। तुम्हारा अगर कोई कैरियर था तो अब नहीं रहा। देखो, रहम करो खुद पर। बता दो मुझे कि कौन हो तुम। उसके सामने कुर्सी खींच कर बैठते हुए उसने दोस्ताना अंदाज इख्तियार किया। मैंने सोचा है, बहुत सोचा है इस बारे में, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। बहुत धीमी सी आवाज़ उसके लबों से निकली। क्या सोचा है तुमने? ऑफिसर ने आगे बढ़कर उसके घुटने पर हाथ रखकर आहिस्तगी से पूछा, जिससे वो खुद बात कर रहा था। यही कि मैं कौन हूँ। अच्छा, तो वो कुछ जान लेने के लिए बेचैन था। एक सिरा हाथ आया है मेरे। उसके अंदाज में सुकून था। वो क्या? वो मजीद आगे को झुका। मुझे लगता है मैं तलब हूँ, मैं कोई ख्वाहिश हूँ। अब के वो कुछ खोया खोया सा लगा। कैसी तलब, कैसी ख्वाहिश? ऑफिसर के अंदाज में बेजारी उतरी। वो दोबारा से पीछे होकर बैठ गया। पता नहीं कैसी तलब, उसके रंग बदलते रहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमेशा मौजूद रहती है। मुझे बताओ तुम्हें किस चीज़ की तलब है? तुम्हारी हर तलब पूरी करूँगा मैं। वो एक बार फिर आगे को झुका। कहा ना कि ये रंग बदलती रहती है। कभी एक पानी की बूंद की तलब पूरी कायनात पर हावी हो जाती है। कभी पुरसुकून नींद की तलब जलती आंखों की हसरत बन जाती है। कभी जिस्म से उठती टीसें सरापा तलब बन जाती हैं। कभी कोई भूली भटकी याद तालब बनी दिल के दर खटखटाने लगती है। कभी किसी को एक नज़र देखने की तलब, कभी किसी सब जंजीरें तोड़ने की तलब, कभी किसी खिलौने की तलब, किसी रंगीन किताब की तलब। तलब थी, तलब है, तलब जो कि एहसास दिलाती है कुछ कमी है, कुछ अधूरा है ना? कुछ अधूरा है ना? कमी। उसकी ज़िंदगी की चमक से खाली आंखों में सवाल जगा। तुम के पागल खपती शायर हो।
ऑफिसर एक झटके से उठा और कुर्सी को ठोकर मारता कमरे से ही निकल गया। तलब थी, तलब है, कमी थी, कमी है। वो जाने किस पर हंसा था। क्या इंसान की किस्मत में भागते रहना है? क्या इंसान का नसीब मांगते रहना है? हिबा की शादी और रिदा की बेपनाह मसरूफियात की बिना पर हुरैन की ज़िंदगी में एक खला पैदा हुआ था और इस खला को अहमद सिद्दीकी ने बहुत तेज़ी से पुर किया। बहुत जल्दी उसने उसकी ज़िंदगी में एक दोस्त से भरकर मुकाम हासिल कर लिया। वह हर उस मौजू पर घंटों बात कर सकता था जिसमें हुरैन की दिलचस्पी होती। वो उसके साथ कुछ पल गुजारने के लिए अपनी अहम से अहम मसरूफियत पर से पुश डाल देता। वो हफ्ते के किसी भी दिन और दिन के किसी भी वक्त उसकी एक कॉल पर उसके सामने हाजिर हो जाता। वो उसके हर मैसेज का एक सेकंड के अंदर जवाब देना अपना फ़र्ज समझता था। हुरैन की पसंदीदगी और नापसंदीदगी उसका सिस्टम बहुत तेज़ी से अपने अंदर फीड कर रहा था। बहुत जल्द उसने उसकी पसंदीदा जगह, खाने और लोग हिफ्स कर लिए थे। हुरैन को उसके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था, सो उसके वक्त का ज़्यादातर हिस्सा उसी के साथ सर्फ होने लगा था। उनकी अक्सर शामें इकट्ठी गुजरती। वीकेंड पर अगर कोई प्लान न बनता तो अहमद उनके घर आ जाता। मम्मा पापा से भी उसकी खासी दोस्ती हो गई थी। इसके अलावा भी वो लोग अक्सर अपनी फेवरेट मूवीज़, सीरीज़ और सॉन्ग्स एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते थे। मैसेजेस पर तो तकरीबन सारा टाइम वो जुड़े रहने लगे थे। इस वक्त भी वो रात का खाना खाने के बाद ग्रीन टी का कप लिए अपने कमरे में आई। वो खाना खा रही थी जब उसे अहमद के मैसेजेस का नोटिफिकेशन मिला, लेकिन उसने देखा नहीं। डिनर टाइम सिर्फ फैमिली टाइम होता था उनके यहाँ। कमरे में आने के बाद बेड पर बैठकर उसने ग्रीन टी का कप साइड टेबल पर पड़े खाकी लिफाफे पर रखा। वो लिफाफा पिछले 2 माह से उसकी साइड टेबल पर पड़ा था। पहले तो उसने अपनी सुस्ती से उसे नहीं उठाया और अब तो इतने अरसे से वो पड़ा था, यूँ लगने लगा था कि जैसे इसकी जगह ही वही है। इस पर काफ़ी सारे निशानात पड़ चुके थे। चाय के कप के निशान, पानी के गिलास के निशान, नाइट सीरम की बोतल के निशान। बैकग्राउंड के साथ तकिया लगाकर उसने टेक लगाई और टांगे समेट कर बैठी थी। दाएं हाथ से कप उठाकर उसने एक सिप लिया और बाएं हाथ से फ़ोन खोलते हुए उसने दोबारा कप रखा था। कप वहाँ नहीं रखा था जहाँ से उठाया था। खाकी लिफाफे पर एक और निशान पड़ गया और उसे पता भी नहीं चला। उसकी तवज्जो हाथ में पकड़े उस जगमगाते आले पर थी। अहमद के व्हाट्सएप पर 3 मैसेजेस थे। दिस पोएम इज़ रिटन फॉर यू, ये टेक्स्ट मैसेज था। अगले मैसेज में गुलाबी रंग के 2 दिल थे, एक निस्बतन बड़ा और दूसरा ज़रा छोटा जो पहले वाले के ऊपर था, और फिर वॉइस मैसेज था। उसके बाएं हाथ की अंगूठे ने तिकोन को छुआ और एक खूबसूरत आवाज़ कमरे में बिखर गई। मनाजर मनाजर हैं बिखरे मनाजर है महवे रक्स सभी अनासर। ये गहरी गंभीर आवाज़ अहमद की नहीं थी। बड़ी अदा से लगाती है हर शाम लाली, सहज सहज के उतरती है रात काली। चंदा ये समझे कि छब उसकी निराली, हवाओं की चालें हैं ही मतवाली। ये लबो लहजा भी अहमद का नहीं था कि इतनी साफ उर्दू वो नहीं बोलता था। सुबह की किरणें छम छम आए, धरती पे आके जाल बिछाएं, बादल की बूंदें ज़मीं को सताएं, बल खाती नदियाँ गीत हैं गाएं। मनाजिर मनाजिर ये बिखरे मनाजिर है महवे रक्स सभी अनासिर। लेकिन ये आवाज़ इतनी भी नामनुस नहीं लग रही थी। नाजा है कि ये नादान है, तुरसे अभी ये अनजान है, उन्होंने अभी देखे नहीं खमदार पलकों के लर्जा साए। वो गुलाल गालों पे के शाम शर्माए, पंखरियों में छुपी मोतियों की लड़ी, गुनगुनाती हुई वो दिलकश हंसी, वो पलकों की लर्जिश, वो होंठों की जुम्बिश, वो कहकहों की बारिश, वो नैनों की साजिश। उसका जहन इस आवाज़ और अंदाज को पहचानने की कोशिश कर रहा था। वो बोले तो बजता एक साज है, वो आए तो मौसम गुल का आगाज़ है, और फिर नाजा सा एक अंदाज है, दिल गिरते रहे वो बेनियाज है, बेसबब कहाँ ये तेरा नाज है, इस हुस्न पे सजता यही अंदाज है। और मनाजर मनाजर ये बेबस मनाजिर, बेबस बेसबब महवे रक्स है ये अनासिर, तेरी दिलकशी तक पहुँचने से कासिर। नज़्म ख़त्म हुई थी। उसने दोबारा से शुरू से लगाई। अब की बार उसकी नज़रें स्क्रीन पर नहीं जमी थी बल्कि सामने वाली दीवार पर थी। नज़रें खाली थीं, सारा जोर समातों पर था। वो बेहद गौर से इस आवाज़ को सुन रही थी। खमदार पलकों के लर्जा साए, वो गुलाल गालों पे के शाम शर्माए, पंखरियों में छुपी मोतियों की लड़ी, गुनगुनाती हुई वो दिलकश हंसी। उसकी नज़र दीवार से हटकर साइड टेबल पर टिकी थी जहाँ खाकी लिफाफा अपने दामन पर बहुत सारे दाग सजाए उसे तक रहा था। मनाजिर मनाजिर ये बेबस मनाजिर। एक मंजर उसके सामने खुला था। वो यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम था जहाँ कोई इवेंट चल रहा था। रिदा और हिबा के दरमियान वो बोर सी बैठी हुई थी जबकि वो दोनों बड़े शौक से स्टेज पर नजरें जमाई बैठी थी जहाँ रोस्ट्रम के पीछे वो नेवी ब्लू शर्ट में मलबूस संजीदा चेहरा लिए खड़ा था हशाम अहमद, लिटरेरी सोसाइटी का प्रेसिडेंट। वो अपनी शायरी सुना रहा था जो हुरैन के सर के ऊपर से गुजर रही थी। मैंने आज बोरियत से फोत हो जाना है, उसने कोई 10वीं बार रिदा की कमर में टहोका दिया। क्या है यार, चुप करके बैठो, जब तक अगली क्लास का टाइम नहीं होता बाहर गर्मी में जाकर किधर ख्वार होना है। अच्छा भला एसी लगा हुआ है यहाँ। वो लोग गर्मी से तंग आकर ऑडिटोरियम में घुसे थे और अब वो दोनों निकलते
निकलने का नाम नहीं ले रही थी। थक कर उसने आंखें मूंद कर सीट की पुर्श से सर टिका लिया। आंखें बंद करने से समात की हिस्स जरा ज्यादा तेज हुई। न जोगियों का भेस भरा, न जंगलों में ही फिरा, किसी मुर्शद से नहीं साबका, न ही किया कोई मराकबा, लेकिन फिर भी मिला मुझे वो ज्ञान है, वाहिद तुझ पे ध्यान है, हर ख्वाहिश हर उमंग मिटा सकता हूँ मैं, तेरे तसव्वुर से तेरी तस्वीर तक के सफ़र में सारी उम्र बिता सकता हूँ मैं। वो खामोश हुआ था, लेकिन बहुत सारी आवाज़ें उभरी थी, मुकर्रर, दोबारा, वंस मोर, और फिर एक दो तीन, न जाने कितनी बार लोगों के इस जोर इसरार पर ये मुसरे दोहराए गए थे। हुरैन को इस वक्त अल्फाज की मानी तो समझ नहीं है, लेकिन उस शख्स की आवाज़ खूबसूरत थी, उसका लबो लहजा सहर अंगेज था। सो वो आंखें मूंदे सुनती चली गई, और जब उसने आंखें खोली थी तो स्टेज पर मौजूद ग्लासेस के पीछे से झांकती दो आंखें उसके चेहरे पर मरकूज थी। इस वक्त तो ये एक इत्तेफाक से ज़्यादा कुछ नहीं लगा, मगर न जाने कि वो 4 साल बाद उस खाकी लिफाफे पर नजरें जमाई और अहमद की भेजी हुई उस शख्स की आवाज़ में नज़म सुनते हुए उसे अपने गाल और कान की लोएं तपती हुई महसूस हुई। उसने फ़ोन पर नज़र जमाई। अहमद कुछ टाइप कर रहा था। उसने व्हाट्सएप बंद किया, फिर वाईफाई ऑफ करके फ़ोन दूसरे तकिए पर फेंक दिया। उसकी नज़र दोबारा से खाकी लिफाफे पर गई। निशानों से भरे इस लिफाफे को वो काफ़ी देर देखती रही, लेकिन उसने उसे उठाया नहीं था। वो रात उसके लिए कुछ गैर आरामदेह सी रही थी। वो ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? मैंने उसे सबसे पहले दोस्त समझा था। उसकी आवाज़ नमनाक थी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। वो सोफे पर बैठी सेल फोन कान से लगाए हुई थी। सेल फोन की नीली रोशनी उसके स्याह बालों में घिरे आज़ुर्दा चेहरे को ख्वाबनाक सा बना रही थी। वो मेरे मैसेजेस इस्तेमाल कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है वो मुझे। हालांकि तुम तो जानती हो कि मैं उसमें कभी भी इंटरेस्टेड नहीं थी। उसने खुद पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, फिर जब मैं उस पर ट्रस्ट करने लगी तो उसने अपनी फीलिंग्स शेयर की। मुझे लगा था कि वो सीरियस है, लेकिन उसने मेरा तमाशा बना दिया है। मुझे बताओ कि अब मैं क्या करूं? नहीं, तुमने सुन लिया, यही काफ़ी है। तुम्हें अंदाज़ा नहीं मैं कितनी परेशान थी। तुमसे सब ये शेयर करके मैं काफ़ी हद तक हल्का फुल्का फील कर रही हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। फ़ोन बंद करके उसने सोफ़े की बैग पर सर टिका लिया। कोई 10 मिनट के बाद उसका फ़ोन बजा। हाँ बोलो। जाना पहचाना नाम देकर उसने पहली बेल पर ही फ़ोन कान से लगा लिया। क्या 2 दिन से गायब है? वो एकदम सीधी होकर बैठी। आवाज़ में शदीद हैरत थी। नहीं, मेरा वाकई आखिरी बार उससे रब्ता 2 दिन पहले ही हुआ। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था वो, धमका रहा था मुझे। यूँ अचानक गायब कैसे हो सकता है? वो उठवाया गया है? अच्छा, इतने दोस्तों की मौजूदगी में एक बाइक वाला कैसे उठा ले गया उसे? बाइक वाला, उसके जहन में कुछ क्लिक हुआ था। आंटी बता रही थी कि तुम्हारी अहमद से काफ़ी दोस्ती हो गई है। वो लोग हिबा के मैके आने पर उसके घर इकट्ठे हुए थे। इस वक्त वो उसके कमरे में बैठे चाय के साथ स्नैक्स की दावत उड़ा रहे थे जब रीदा ने यकदम मौजू बदला। मुझे समझ नहीं आता, तुम मेरी दोस्त हो या मेरी मामा की दोस्त हो। वो 2 बच्चों की अम्मा बन के तुम बिल्कुल ही आंटियों वाली हरकतें करने लगी हो। चाय के सिप लेते हुए हुरैन ने उसकी खबर ली। ब्राउन कलर के चूड़ीदार पजामे पर डार्क ग्रीन कलर की लॉन्ग शर्ट और दुपट्टा लिए आज वो इतनी फ्रेश नहीं लग रही थी। बनना पड़ता है मेरी जान, बनना पड़ता है। जब आप अम्मा बन जाएंगी तो माओ और आंटियों के कंसर्न्स भी समझ आने में लगते हैं, और आप खुद को उनसे अलहदा नहीं समझते। हिबा के बेड पर नीम दराज बिस्किटों से इंसाफ करती रीदा ने बड़े ड्रामाई अंदाज में आह भर के कहा, लगता है आजकल घर बैठे सारा दिन ड्रामा ही देखती रहती हो तुम। हुरा ने फिर उसके घर बैठने पर चोट की। अरे हाँ, ड्रामों से याद आया। हिबा ने समोसे का बाइट लेते लेते उसे वापस प्लेट में रखा। मेरी नंदी बहुत ड्रामे देखती हैं, उनसे ही तो मैंने जिक्र सुना है एक ड्रामे का, अभी पिछले दिनों चला है और बहुत मशहूर हुआ है, माही यार दी घरोली। मैंने हाल ही में देखना शुरू किया। बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है। मतलब सस्पेंस, रूहानियत, साइकोलॉजी और फिलॉसफी का कोई मिक्सचर है। इस तरह के ड्रामे हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं बनते। हिबा का अंदाज काफ़ी पुरजोश था। अरे हो गई, कोई बिखरा हुआ रईस ज़्यादा, उसे किसी गरीब लड़की से मोहब्बत हो गई होगी। मोहब्बत हासिल करने की कोशिश में साइकोलॉजी और फिलॉसफी होगी, और ना मिलने पर रूहानियत। रीदा ने हंस पे आदत अपना जरहेज दिमाग इस्तेमाल किया। अरे नहीं भाई, हिबा को उसकी कहानी पसंद नहीं है। अच्छा, तो फिर एक गरीब लड़की की एक अमीर लड़के से अचानक शादी हो गई होगी, और लड़की को निकाह के 2 बोल के अवज़ लड़के से मोहब्बत हो गई होगी, लेकिन लड़का बड़ा ही कोई खड़ूस होगा। उसको समझने के लिए लड़की को साइकोलॉजी, फिलॉसफी और रूहानियत की ज़रूरत पड़ेगी। रिदा की पटारी से एक नई कहानी बरामद हुई। ऐसा भी नहीं है। हिबा के लहजे में बाकायदा नाराज़गी थी। अच्छा, सारे अच्छे नावलों और ड्रामों में यही तो होता है। रिदा को शदीद मायूसी हुई। कह तो रही हूँ कि यूनिक स्टोरी है। हुरैन से ही कह रही है। बिल्कुल औरत हो गई हो तुम, मेरी सास वाली हरकतें कर रही हो। वो भी यही करती हैं, पूरी बात सुनने से पहले ही अपने अंदाजे लगाना शुरू कर देती हैं। बाद में चुगलियाँ करना तुम अपनी सास की। स्टोरी बताओ पहले। रिदा वाकई कहानी जानने में इंटरेस्टेड थी, तभी वो उठ कर बैठ गई। शुरू में बज़ाहिर एक लड़की की कहानी चलती है जिसके नॉर्मल घर के और ऑफिस के मसाइल होते हैं, लेकिन उसके हर मसले का हल कहीं ना कहीं से निकल आता है। जैसे एक बार वो अपनी दोस्त के गांव जाती है शादी अटेंड करने, वापसी में रात हो जाती है, बारिश भी शुरू होती है।
वो शहर से कुछ दूर होती है जब उसकी गाड़ी भी ख़राब हो जाती है। वो एक वीराने में फंस जाती है। वो अपने घर रब्ता करने की कोशिश करती है मगर नहीं हो पाता। कुछ देर बाद उसके फ़ोन के सिग्नल्स भी चले जाते हैं। वो मुकम्मल नाउम्मीद हो चुकी होती है जब एक शख्स आता है और उसे इस मुश्किल से निकाल लेता है। फिर इसी तरह के और बहुत सारे वाक़यात होते हैं। वो अपने लिए बहुत सारे मसाइल खड़े करती है मगर सब मसाइल का हल निकल आता है। कहानी मज़ीद चलती है तो पता लगता है कि उसके मसाइल का हल निकलने में एक पैटर्न है। कोई है जो हर दफ़ा उसकी मदद करता है, उसे बचा लेता है। कहानी मज़ीद आगे बढ़ती है तो खुलता है वो इसके घर के मालिक का बेटा है। एक ऐसा करैक्टर जो पूरी कहानी में बिल्कुल गैर अहम रहा होता है। अब ड्रामे में ज़्यादा अहम किरदार मालिक के बेटे का होता है। वो इस लड़की को कई सालों से पसंद कर रहा होता है मगर उसने कभी उसे बताया नहीं होता। वो उसकी पेंटिंग्स बनाता है, उसे हर वक्त नज़र में रखता है, उसके हर मसले का हल करता है मगर कभी भी खुलकर उसके सामने नहीं आता। वो बहुत कम उम्र से मेहनत मजदूरी कर रहा होता है और करते करते उसके काफ़ी सारे ताल्लुकात बन जाते हैं। आखिरकार वो किसी खुफिया एजेंसी के साथ काम करने लगता है। उसके माँ बाप मर जाते हैं, उसका सोशल स्टेटस इम्प्रूव हो जाता है लेकिन वो फिर से जाकर माली भर्ती होता है उसी घर में जहाँ उसका बाप माली था। वो वहीं रहता है जहाँ उसका बाप रहता था। वो ये अब सब सिर्फ़ और सिर्फ़ उस लड़की के करीब रहने के लिए करता है। वो लड़की फाइनली उस लड़के तक पहुंच जाती है और उसके कमरे में अपनी तस्वीरें भी देख लेती है। उसे ये भी आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता है कि अब वो माली का बेटा सिर्फ माली का बेटा नहीं है बल्कि इंटेलिजेंस ऑफिसर है। लेकिन जैसे ही लड़की उसकी जानिब माइल होती है, लड़के को उसकी जॉब के सिलसिले में कहीं दूर भेज दिया जाता है और वहाँ वो गिरफ्तार हो जाता है। वो लड़की सालों उसका इंतज़ार करती रहती है। 7 साल बाद वो रिहा होकर लौटता है। वो लड़की उसको जाकर मिलती है मगर वो उसे नहीं पहचान पाता। वो क्यों नहीं पहचान पाता? रिदा को शदीद एतराज़ हुआ। इसी में सारी रूहानियत और फ़िलासफ़ी है। दरअसल अपने मिशन के दौरान जब वो पकड़ा गया होता है तो उसे टॉर्चर किया जाता है। इस टॉर्चर के दौरान वो अपने अंदर पनाह ढूंढता है और वो वहीं कहीं सूफ़ी बन जाता है। अजीब बेतुकी कहानी है। रिदा को ये अंजाम पसंद नहीं है। बेतुकी नहीं, बहुत डीप है जो तुम्हें समझ नहीं आ रही। तुम्हें खुद कौन सी आई हुई है अजीब बर्ड्स और पीसीस में सुना रही हो। अब मैं तुम्हें मेन थीम सब ही बता सकती हूँ। 30-35 किस्तों का ड्रामा पूरा का पूरा तो नहीं सुना सकती ना। ये थीम थी। ख्वाह के स्पॉयलर्स दिए हैं तुमने। थीम ही बता रही थी पहले तुम, मगर तुम सुन कहाँ रही थी? खुद से कहानियाँ गढ़े जा रही थी। खैर ये बताओ ये लिखा किसने है? रिदा का अंदाज पुरतजस्सुस था। यही तो बताने के लिए सारी दास्तान बयान की है। याद है यूनिवर्सिटी में लिटरेरी सोसाइटी होती थी और इसमें एक सीरियस सी शक्ल वाला लंबा सा लड़का होता था। शाह महमद उसका नाम था। उसने लिखा है। अरे हाँ, याद आया। रिदा को काफ़ी कोशिश के बाद याद आया। अरे वो तो शायर नहीं था। शायर भी है लेकिन ये ड्रामा बहुत मशहूर हुआ है उसका। स्टोरी ज़रा डिफरेंट लग रही है, देखूंगी मैं। वैसे जितना मुझे याद पड़ता है उसकी शायरी भी अच्छी होती थी। न जोगियों का भेस पड़ा न जंगलों में ही फिरा, ऐसा ही कुछ था ना जो बहुत मशहूर हुआ था यूनी में। हाँ, और हूर ऐन तब भी बोर होती थी उसकी शायरी से और अभी भी इतनी देर से चुप बैठी है। हिबा ने उसकी खामोशी महसूस की। तुम्हें याद है हशार महमद? रिदा ने उससे सवाल किया जिस पर वो गड़बड़ाई थी। वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि वो सब उन्हें बताए कि नहीं। काफ़ी ऑर्डिनरी सी शख्सियत होती थी ना उसकी। उसने अपनी तरफ से काफ़ी संभल कर कहा, फॉर गॉड सेक हो रहा है, ज़ाहिर शख्सियत के अंदर भी कुछ होता है। हिबा को उसका तबसरा पसंद नहीं है। बस रहने दो, उसे अहमद सिद्दीकी पसंद आ गया है, इसके लिए यही बहुत है। ये रिदा थी, अहमद सिद्दीकी, अजीम सिद्दीकी का बेटा, जो शाहिद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं। ये सवाल हिबा ने किया। हाँ वही एक, मैं तो एक बार दो बार मिली हूँ इससे, हुरैन के हाँ ही के फंक्शंस में ही। लेकिन मुझे बहुत पसंद आया। वो पढ़ा लिखा सुलझा हुआ इंसान है। ये रिदा थी। काफ़ी अरसे से वो हुरैन की तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रहा था। लगता है मैं ही उसके रास्ते की दीवार थी क्योंकि हुरैन तकरीबन हर वक्त मेरे साथ ही रहती थी। मेरी शादी होते ही इस बेचारे की किस्मत खुल गई। हिबा का अंदाज हल्का फुल्का था। अब अल्लाह करे ये किस्मत खुली ही रहे। मैडम हुरैन काफ़ी नाजुक मिजाज की मालिक हैं। न जाने कब क्या बात मोहतरमा को नागवार गुजर जाए। रिदा के अंदाज में तशवीश थी। वैसे हुरैन तुम्हें थोड़ा खुद को बदलना चाहिए। ज़िंदगी में कभी ना कभी थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ हर एक को करना पड़ता है। हिबा का अंदाज समझाने वाला था। ये आज तुम क्यों गूंगे का गुड़ खाकर बैठी हुई हो? रिदा ने हैरत से कुर्सी पर किसी खूबसूरत मूर्ति की तरह साकत बैठी अपनी सहेली को देखा। पता नहीं बोलने का दिल नहीं कर रहा आजकल मेरा। उसकी आवाज़ धीमी और बेजार सी थी। थोड़ी डाउन हो रही हूँ मैं। किसी चीज़ का दिल नहीं कर रहा। यही कहीं अहमद सिद्दीकी से मोहब्बत की अलामत तो नहीं है? रिदा के अंदाज में शोखी थी। हुरैन और किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत इम्पॉसिबल। हिबा की हंसी बेसाख्ता थी लेकिन लहजे में यकीन का अमल बोल रहा था। अब इतनी भी खुद पसंद नहीं है हमारी दोस्त, और रही किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत की तो दिल पर कब किसी का इख्तियार चला है। रिदा पुरमी थी। तुम वाकई आजकल अपना वक्त ड्रामों पर ज़ाया कर रही हो, तभी हर सिचुएशन को ड्रामाई रंग देने की कोशिश करती हो। दोनों हाथों से बाल पीछे करते हुए हुरैन ने कुर्सी से टेक लगाई। उसके अंदाज में सुस्ती थी। लगता है नींद भी रूठी हुई है, आंखें सूजी सूजी लग रही हैं। रिदा के अंदाज में शरारत थी। वैसे कुछ हुआ हुआ है मुझे?
آج کل بہت سوچنے لگی ہوں، تھک جاتی ہوں سوچ سوچ کر۔ اس نے آنکھیں موند لی۔ اس کے انداز میں ڈھیروں تھکن تھی۔ کس بارے میں سوچتی ہو تم؟ ہبا باقی پرتجسس تھی۔ اپنے بارے میں، اس نے آنکھیں موندے ہوئے ہی جواب دیا۔ دیکھا؟ اس نے جتاتی نظروں سے ردا کو دیکھا۔ اپنے بارے میں کیا سوچتی ہو تم؟ ردا کی آواز میں کافی حیرانی تھی۔ پتہ نہیں، الجھی الجھی سوچیں ہوتی ہیں جن کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آتا، لیکن انہیں ذہن سے جھٹکنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کسی طاقتور مقناطیس سے لوہے کو چرانا۔ آپ اپنی پوری قوت صرف کر کے ذہن کو سوچوں سے خالی کریں اور ایک لمحے کی بے تاخیر کے بغیر وہ دوبارہ سے آ کر آپ کے ذہن سے لپٹ جائیں۔ سینے پر ہاتھ باندھے کرسی کی بیک پر سر ٹکائے آنکھیں موندے وہ بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ بولتے ہوئے اس کے لبوں میں بہت خفیف سی حرکت ہو رہی تھی جو بغور دیکھنے پر محسوس ہوتی۔ اس پر واقعی کسی خوبصورت مورتی کا گمان ہو رہا تھا۔ اس کی کلاس اس وقت 3 گروپس میں تقسیم ہوئی تھی اور سب لوگ گروپس میں وائس ماڈیولیشن کی پریکٹس کر رہے تھے۔ وہ اس وقت ایک گروپ کے ساتھ بیٹھی تھی، سفید لباس میں ملبوس، سیاہ سلکی بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے، کانوں میں سفید موتیوں کی ایئرنگز پہنی، ہلکے سے میک اپ میں وہ اپنی انفرادیت قائم رکھے ہوئی تھی۔ 1 2 3 4 وہ 1 سے 10 تک گنتی دہرا رہی تھی کہ ہر بھٹتے ہنسے کے ساتھ اس کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ پھر اس نے 10 سے 1 تک الٹی ترتیب سے گنتی دہرائی۔ اب ہر کم ہوتے ہنسے کے ساتھ اس کی آواز بھی کم ہو رہی تھی۔ اس کے چپ ہوتے ہی اس کے سامنے بیٹھی لڑکی نے وہ مشق دہرائی۔ اس پریکٹس سے آپ کو اپنی آواز کی رینج پتہ چلے گی کہ آپ کتنا اونچا یا کتنا آہستہ بول سکتے ہیں، اور اس پریکٹس کے ذریعے نارمل گفتگو میں آپ اپنی آواز کے اتار چڑھاؤ کو کنٹرول کر سکو گی۔ سمجھاتے ہوئے اس کی آواز میں ایک محسوس کن نرمی اتر آئی۔ میم، مجھے ایک چیز پوچھنی تھی۔ اسی گروپ میں موجود لڑکے نے سوال کیا۔ جی؟ وہ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں نے اکثر فیل کیا ہے کہ جب میں بہت ٹینس اور انڈر پریشر ہوتا ہوں تو میری عجیب سی آواز نکلتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دراصل جب ہم ٹینس ہوتے ہیں تو ہماری باڈی کے دوسرے مسلز کی طرح ہمارے ووکل کارڈز بھی ٹینس ہو جاتے ہیں، تبھی ہماری تھوڑی پتلی اور عجیب سی آواز نکلتی ہے۔ ہم اپنے ووکل کارڈز کو کیسے ریلیکس کر سکتے ہیں؟ ایک طریقہ تو یہ ہے آپ کچھ ہم کریں، یعنی کہ ہلکی آواز میں کچھ گنگنائیں، اس سے کافی فرق پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ لمبی سانسیں لینا بھی کافی ہیلپ فل ہوتا ہے۔ وہ بھی بات کر رہی تھی کہ اس کا فون بجنا شروع ہوا۔ احمد کی کال تھی اور کلاس کا وقت بھی ختم ہونے کو تھا۔ ایکسکیوز می، اس گروپ کے لوگوں سے معذرت کرتی ووٹ کی، اور جب کلاس سے نکلی تو کچھ گروپس ابھی اپنی پریکٹس جاری رکھے ہوئے تھے اور کچھ اب نکلنے کی تیاری کر رہے تھے۔ ہاں احمد، ختم ہوگی تمہاری کلاس؟ ہاں تقریباً۔ تم کب واپس آئے؟ وہ اپنے بزنس کے سلسلے میں کچھ دنوں سے بیرون ملک دورے پر تھا۔ صبح ہی آیا ہوں، ابھی تمہارے انسٹی ٹیوٹ کے گیٹ پر کھڑا ہوں، فری ہوتے ہی آ جاؤ۔ اس کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا۔ تم آفس نہیں گئے، یا اگر صبح آئے ہو تو تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیا کہے۔ وہ اسے نہیں ملنا چاہتی تھی۔ عجیب سی الجھن تھی جس نے اسے اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور وہ اس پر کچھ بھی آشکار نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ نہیں، آفس نہیں گیا، گھر پر ہی تھا صبح سے۔ اتنے دن ہوئے تم سے ملے، میں تم سے ملنا چاہ رہا ہوں۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے یہاں کھڑا تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ تمہیں میرا ٹائم ٹیبل پتہ تو ہے، ویٹ کی کیا ضرورت تھی؟ بس میں جلدی ملنا چاہ رہا تھا نا تم سے، تبھی جلدی گھر سے نکل آیا ہوں۔ آ رہی ہوں میں تھوڑی دیر تک۔ 15 منٹ کے بعد وہ اس کی گاڑی میں اس کے برابر بیٹھ رہی تھی۔ مجھے نہیں اچھا لگا تمہارا اتنی دیر ویٹ کرنا، اس نے بیٹھتے ساتھ ہی چتایا۔ آدھا گھنٹہ تو کوئی وقت ہے ہی نہیں، میں پچھلے 1 ہفتے سے تم سے ملنے کا ویٹ کر رہا ہوں۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے گویا حال دل سنایا۔ دس از نوٹ اے ہیلدی بیہیویئر۔ یہ سب سن کر اسے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ خیر، تم نہیں سمجھ سکتی یہ سب۔ چلو بتاؤ کیا کھانے کا موڈ ہے؟ گاڑی مین روڈ پر ڈالتے ہوئے اس نے بات بدلی۔ کیوں؟ میں کیوں نہیں سمجھ سکتی؟ اس کے انداز میں ناراضگی تھی۔ شمع کیسے سمجھ سکتی ہے کہ پروانے پر کیا بیتتی ہے؟ تم شاعر کب سے ہو گئے؟ وہ حیران ہوئی۔ تم کسی کے سامنے ہو اور وہ شاعر نہ ہو، یہ حیرت کی بات ہوگی۔ اس طرح کی باتوں سے مجھے خوشی نہیں، اب الجھن ہوتی ہے۔ اس کے انداز میں بیزاری سمائی تھی۔ کیوں؟ اب ایسا کیا ہو گیا؟ موڑ کاٹتے ہوئے اس نے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں، ویسے ایک بات بتاؤ۔ اگر تم میرے لیے فیلنگز رکھ رہے ہو تو یہ تمہارا ذاتی مسئلہ ہے نا، اس میں میرا قصور تو نہیں۔ میں نے کب قصوروار ٹھہرایا تمہیں؟ کیا ٹھہرا سکتے ہو مجھے؟ مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی ایسا کروں گا۔ اس اسٹیج پر اگر میں تم سے اجنبی بن جاؤں تو تم کیا کرو گی؟ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ اس کے انداز سے ایک بے چینی ہے ہوئی۔ بتاؤ نا، کیا کرو گے؟ وہ جان لینا چاہتی تھی۔ تم ایسا کرو گی؟ اس نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں ایسا کیوں نہ کروں؟ اس کے انداز میں جیسے کھلا چیلنج تھا۔ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں سلگتی سی کیفیت تھی، جبکہ لہجے میں بے بسی۔ سڑک پر نظر جمائے اسٹیئرنگ وہیل پر اس کی گرفت بے ساختہ مضبوط ہوئی۔ تم واحد شخص تو نہیں ہو جو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ وہ بے تاثر چہرہ لیے اس سے سوال پر سوال پوچھ رہی تھی۔ اگر کوئی اور شخص ہے جو تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے تو تم اصولی طور پر اس کے لیے مجھ سے اجنبی بن سکتی ہو۔ ہر شخص اپنے لیے بہترین چاہتا ہے، میں بھی ایسا ہی چاہتا ہوں، سو تمہاری اس چاہت پر اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ وہ کافی دیر کے بعد بولا، مگر مضبوط لہجے میں۔ تم بہت اچھے ہو احمد، اس نے دل سے اعتراف کیا، پھر بھی مجھے تم سے محبت نہیں ہو پائی۔
اس کے انداز میں شکوہ اور سوال دونوں ہی پنہا تھے۔ کیا ایسا ہونا ضروری ہے؟ نہیں، ضروری تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ شاید تمہیں لگتا ہے میں کبھی تم سے اجنبی بن سکتی ہوں۔ جن سوالوں کے جواب وہ خود نہیں ڈھونڈ پائی تھی، وہ سوال وہ اس کے سامنے رکھ رہی تھی۔ پہلے نہیں لگتا تھا، اور اب کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ اب تم پہلے جیسی نہیں لگ رہی۔ کچھ بدلا ہے تمہارے اندر اس ایک ہفتے میں۔ کچھ کیا؟ کچھ ہے جو تمہیں کھٹک رہا ہے۔ کوئی سوال ہے تمہارے اندر جسے تم میرے سامنے نہیں رکھنا چاہ رہی، مگر تمہارے منہ سے نکلنے والا ہر جملہ سوال بن گیا ہے۔ جسٹ فارگاٹ اٹ۔ یہ بتاؤ تمہارا ٹور کیسا رہا؟ اس نے ایک دم بات بدلی۔ سب بہت زبردست ہو گیا۔ ایک کامیاب بزنس ٹرپ کہہ سکتی ہو تم اسے۔ اس نے بھی ایک دم موضوع بدلنے پر اعتراض نہیں کیا، کیونکہ وہ موضوع اسے بھی غیر آرام دے کر رہا تھا۔ ماہیار دی گھرولی ڈرامہ۔ رات سونے سے پہلے اس نے یوں ہی سرچ باکس میں ٹائپ کیا۔ خاکی لفافہ ویسے کا ویسا پڑا تھا، اس پر بڑے نشان بھڑ کے تھے، مگر وہ کھولا نہیں گیا۔ وہ کبھی بھی ریڈر نہیں رہی تھی۔ کچھ پڑھنا ہمیشہ اسے ایک کام لگتا تھا، اور وہ اس کام سے کترا رہی تھی، مگر فون پر اکثر بے تحاشا وقت بنا سوچے سمجھے لگ جاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ سونے سے پہلے بے وجہ یوٹیوب کی فیڈ سکرول کر رہی تھی۔ آبدہ پروین کا کوئی کلام اس کی نظروں کے سامنے سے گزرا۔ اس نے ڈرامہ سرچ کیا۔ سب سے پہلی ویڈیو اس کے OST کی تھی جو اس نے کھولی تھی۔ اوہ اللہ کی گہری گمبھیر آواز رات کی خاموشی میں کچھ زیادہ ہی پراثر محسوس ہوئی۔ ویڈیو میں مختلف مناظر چل رہے تھے، ایک کے بعد ایک منظر، ایک کے ساتھ ایک منظر، اور ان مناظر کے ٹکڑوں سے کہانی کی جہت واضح ہو رہی تھی، وہ کہانی جو کہ وہ سن چکی تھی۔ ایک اللہ کولو میں ڈرتی ماہیار دی گھرولی بھرتی کی آواز بیک گراؤنڈ میں تھی، اور مختلف مناظر ابھر رہے تھے۔ ان سب میں ایک لڑکا ہوتا ہے، کہیں وہ رات کے اندھیرے میں ٹارچ پکڑے گھنے جنگل میں گھوم رہا ہے، کہیں وہ کیاری کے سامنے پاؤں کے بل بیٹھا پھولوں پر نظریں جمائے ہے، کہیں وہ ایک پرانی کوٹری ٹائپ کمرے میں پینٹنگ کر رہا ہے، کہیں وہ آدھی رات کو کسی آفیسر نما کمرے میں گھسا فائلز کے ڈھیر کو الٹ پلٹ رہا ہے، کہیں وہ گاڑی کے نیچے لیٹا گاڑی ٹھیک کر رہا ہے، کہیں وہ کئی لوگوں سے وہ یک وقت لڑ رہا ہے، اور پھر کسی ایک بندے کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا ہے۔ اوہ اللہ اللہ کی روح کو چھو جانے والی صدا بلند ہوتی ہے، اور وہی لڑکا ایک اندھیری کوٹری میں الٹا لٹک رہا ہوتا ہے۔ تو ہی ہے، میں نہیں سجتا، میں نہیں سجنا، تو ہی ہے، میں نہیں سجنا، کھوئے دی پرچھائی مانگو، گم ریا من ماہی۔ الٹے لٹکے لڑکے کی آنکھوں تک کیمرہ جاتا ہے، اور کئی نئے مناظر ابھر کے سامنے آتے ہیں۔ ان سب مناظر میں ایک لڑکی ہوتی ہے، ہنستی ہوئی، روتی ہوئی، باتیں کرتی ہوئی، خاموش بیٹھی ہوئی، لڑائی کرتی ہوئی، ڈرتی ہوئی، دوڑتی ہوئی۔ اس لڑکی کے ہر روپ کے سامنے آنے پر حورین کی حیرت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ سامیہ نے کہا تھا ان کی ہر تحریر میں آپ کو اپنا آپ نظر آئے گا۔ اس نے صحیح کہا تھا، کیونکہ اس لڑکی کے بس چہرے کے نقوش اس سے تھوڑے مختلف تھے، باقی وہی قد و قامت، وہی بال، وہی لباس، وہی بات کرنے، ہنسنے، بیٹھنے، چلنے کا انداز۔ جدھر ویکھا تو یوں وسدا، جدھر ویکھا تو یوں وسدا، بلا دسدا نہیں۔ اور وہ ایک بار پھر سے کبھی سائڈ ٹیبل پر پڑے اس خاکی لفافے کو دیکھ رہی تھی، تو کبھی اپنے ہاتھ میں چمکتے اس سالے کو۔ بلاخر اس نے فون سائڈ پر رکھ دیا، اور اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے لفافہ اٹھایا۔ 3 ماہ پہلے اس کی ملازمہ یہ لفافہ وہاں رکھ کر گئی تھی، وہ پورے 3 ماہ بعد اسے اٹھا رہی تھی۔ لفافے کا منہ فولڈ کر کے بند کیا گیا تھا۔ اس نے کھول کر اندر جھانکا۔ اس میں بہت سارے صفحے تھے، پرانے صفحے، کوئی کسی کاپی سے نکلے ہوئے، کوئی کسی رجسٹر سے، تو کوئی رائٹنگ پیڈ سے۔ اس نے کاپی سے نکلا ہوا ایک نسبتاً چھوٹا صفحہ نکالا۔ وہ ریڈر نہیں تھی، اور پڑھنا اسے ایک کام لگتا تھا۔ ہو رین علی، کیا تم جانتی ہو، تم میرے لیے کسی مقدس صحیفے کی طرح ہو۔ تمہاری ہر ادا میرے لیے کسی آیت کی مانند ہے۔ جب وہ میرے سامنے آتی ہے تو میں سانس تک روکے اسے اپنی ہر حص سے سمیٹ کر اپنے اندر اتارتا ہوں، اور پھر گھنٹوں اس پر غور و فکر کرتا رہتا ہوں، اسے ہر پہلو سے جانچتا، ہر رخ سے پرکھتا ہوں۔ اس جانچ پرکھ سے جو رنگ نکل کے میرے سامنے آتا ہے، اسے تمہاری اس شخصیت میں بھرتا ہوں جو میرا تصور تراش رہا ہے۔ تمہاری اس تصوراتی شخصیت کے رنگ میں میری اصلی شخصیت خود بخود ڈھلنے لگتی ہے۔ زمان، مکان اور مادیت کے جو فاصلے تمہارے اور میرے درمیان حائل ہیں، انہیں میں شاید کبھی پاٹ نہیں سکوں، لیکن کیا 2 اشیاء تب بھی قریب نہیں کہلائی جا سکتی جب وہ ایک جیسی خصوصیت اور شخصیات کی حامل ہو؟ احمد کی مدر کافی عرصے سے انسسٹ کر رہی ہیں کہ ہمیں کوئی منگنی وغیرہ کا فنکشن رکھ لینا چاہیے۔ ناشتے کی ٹیبل پر ماما نے اچانک موضوع چھیڑا۔ منگنی؟ چائے کا کپ پکڑتے اس کے ہاتھ ساکت ہو گئے۔ کیوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ اسے شدید اعتراض ہے۔ ماما، ابھی ہم نے انہیں فائنل یس نہیں کہا۔ اس کا انداز یاد دہانی کروانے والا تھا۔ یعنی تم احمد سے شادی کے حق میں نہیں ہو؟ پاپا کے لہجے میں حیرانی تھی۔ میں نے یہ نہیں کہا۔ سر جھکا کر اس نے کپ اٹھایا۔ تو پھر کیا مطلب لیں ہم تمہارے اس انکار کا؟ ان کے سوال پر ابھی بھی حیرت تھی۔ پاپا، مجھے کچھ وقت چاہیے سب سمجھنے کے لیے۔ تم ابھی تک احمد کو سمجھ نہیں پائی، سارا وقت تو تقریباً اکٹھے ہوتے ہو تم لوگ۔ ماما کی حیرانی میں غصے کی بھی آمیزش تھی۔ میں خود کو بھی نہیں سمجھ پا رہی، کہہ کر ساتھ والی کرسی سے بیگ اٹھا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اللہ حافظ، ناشتہ تو پورا کر لو۔ ماما کی آواز پیچھے سے آئی۔ کر لیا ہے، اس نے مڑے بغیر جواب دیا۔
یہ لڑکی ہمیں پاگل کر کے چھوڑے گی۔ ماما کے چہرے پر بے بسی درج تھی۔ یہ چاہتی کیا ہے؟ پاپا کے چہرے پر بھی کچھ ایسے ہی تاثرات تھے۔ تمہیں پتہ ہے ماما پاپا باقاعدہ مجھے منگنے کے لیے فورس کر رہے ہیں کیونکہ تمہارے پیرنٹس کی طرف سے پریشر ہے ان پر۔ اپنے بیڈ پر نیم دراز وہ فون پر احمر سے بات کر رہی تھی۔ میرے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ انہیں تمہیں فورس کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ اس کی آواز میں الجھن جاگی تھی۔ احمد دیکھو، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے ابھی کچھ وقت چاہیے فیصلہ کرنے کے لیے۔ ابھی بھی حورین؟ اس کے انداز میں دکھ اور تکن کا عجیب سا امتزاج تھا۔ ہمیں بات کرتے ہوئے ابھی صرف چند مہینے ہوئے ہیں۔ وہ اس کی آواز سے چھلکتے جذبات کی وجوہات سمجھنے سے قاصر تھی۔ بات کرتے ہوئے چند مہینے ہوئے ہیں، محبت تو میں تم سے کئی سالوں سے کر رہا ہوں۔ میں سالوں کا نہیں، مزید چند مہینوں کا انتظار کرنے کا کہہ رہی ہوں تمہیں۔ میں سالوں کا انتظار بھی کر لوں گا اگر یہ یقین دہانی کراؤ کہ ان سالوں کے بعد تمہارا جواب ہاں میں ہی ہوگا۔ محبت کے دعوے دار تم ہو اور تقاضے نبھانے کی توقع مجھ سے کر رہی ہو۔ مطلب میں کسی یقین کی ڈور تمہارے ہاتھ میں نہیں تھما سکتی۔ مجھے خود اپنا آپ کسی کٹی پتنگ کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں کچھ بھی نہیں چاہ رہی تم سے۔ اگر انتظار کرنا چاہتے ہو تو چند مہینے کر لو، نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو۔ تمہیں خود بھی پتہ ہوگا کہ نہ کرنے کا آپشن میرے پاس موجود ہے ہی نہیں۔ احمد پلیز، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتی ہوں مگر اپنی محبت کسی بیڑی کی طرح میرے پاؤں میں ڈالنے کی کوشش مت کرنا، نہ ہی اپنے جذبات اور احساسات کسی بوجھ کی طرح میرے کندھے پر لاڑنا۔ مجھے ہلکا پھلکا آزاد ہو کر فیصلہ کرنے دو، یہی ہم دونوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ میں شعوری طور پر ایسا کبھی نہیں کروں گا، اور اگر غیر شعوری طور پر میں نے ایسا کچھ کیا تو تم مجھے احساس دلا دینا۔ احمد، تم بہت اچھے انسان ہو، میں کبھی بھی تمہیں ہرٹ کرنا نہیں چاہوں گی۔ اگر میں نے کوئی ایسا فیصلہ کیا جس سے تمہیں لگے کہ تم ہرٹ ہوئے ہو، اس وقت تو وہ وقتی ہرٹ تمہیں کسی مستقل ہرٹ سے بچانے کے لیے ہوگا۔ مجھے مستقل ہرٹ ہونے پر بھی اعتراض نہیں اگر وہ ہرٹ تمہاری طرف سے ہو۔ وہ ہنسا، لیکن خیر، فیصلے کا اختیار بھی تمہارے پاس ہے۔ ایک دوست کے طور پر یقین رکھنا مجھ پر، میں جو فیصلہ کروں گی وہ ہم دونوں کی بہتری کے لیے ہوگا۔ فون بند کرنے کے بعد وہ کتنی دیر تک مردہ اسکرین کو گھورتی رہی تھی۔ حورین علی، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ اس دنیا کے علاوہ بھی ایک دنیا ہے؟ وہ دنیا جس کے ہم سب کبھی باسی ہوا کرتے تھے۔ مجھے کیوں لگتا ہے اس دنیا میں ہم دونوں کے درمیان کوئی گہرا تعلق تھا۔ ہم نے کئی صدیاں ساتھ بتائی ہیں، کئی زمانے ہم نے اکٹھے دیکھے ہیں۔ پھر اچانک کوئی نیا مارکا سر کرنے کی خواہش تمہارے اندر مچل اٹھی اور تم اس محدود مادی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے پر توڑنے لگی، جبکہ میں اسی لامحدود دنیا میں رہنا چاہتا تھا۔ میں بھی اس دنیا کے سربستہ جہاں کھوجنا چاہتا تھا، لیکن میری ہچکچاہٹ، میری ناآمادگی کو خاطر ملائے بغیر تم اس دنیا میں اتر آئی، اکیلی مجھے وہیں چھوڑ کے۔ میں جو صدیوں تمہاری سنگت میں رہا تھا، تمہارے بن میری ہر خواہش معنی کھونے لگی، سو میں بھی تمہارے پیچھے اس دنیا میں چلا آیا۔ یہ دنیا جہاں آنے کے لیے میں تیار نہیں تھا، جہاں کی شاید مجھے سمجھ بھی نہیں تھی، اور جہاں میں ابھی تک خود کو اجنبی محسوس کرتا ہوں، لیکن تمہارے لحاظ سے یہاں رچ بس گئی ہوں، یوں جیسے تم ہو ہی یہیں کی۔ کوئی اور دنیا تھی ہی نہیں جہاں سے تم آئی ہو، کوئی اور تھا ہی نہیں جس کے ساتھ تم نے زمانے بتائے ہیں، اور میں جو تھا ہی تمہاری تلاش میں، میں نے پہلی نظر میں تمہیں پہچان لیا، اور پھر اس دنیا میں تم میری ہر سوچ، ہر تمنا، ہر طلب کا محور بن گئی۔ باقی تو یہ کورس ہر لحاظ سے بہترین تھا، مگر ایک نہایت اہم چیز مجھے اس سب میں مسنگ لگی۔ ایک سیشن اختتام پذیر ہوا اور وہ اس وقت لوگوں سے فیڈ بیک لے رہی تھی جب کلاس میں موجود ایک لڑکے نے نکتہ اٹھایا۔ وہ کیا؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ میڈم، میں توقع کر رہا تھا کہ کمیونیکیشن کی کلاسز میں بحث و مباحثے کی بھی پریکٹس ہوگی۔ ہمیں کچھ ٹپس بتائی جائیں گی کہ بحث کیسے جیتی جا سکتی ہے، مقابل سے اپنی بات کیسے منوائی جا سکتی ہے، مگر آپ لوگوں نے تو اس موضوع کو ٹچ بھی نہیں کیا، حالانکہ اتنا اہم موضوع ہے یہ۔ اس کے انداز میں شدید مایوسی تھی۔ تقریباً 1 سال پہلے تک یہ موضوع ہمارے پروگرام کا نہایت اہم حصہ ہوا کرتا تھا، لیکن کافی سوچ بچار کے بعد ہم نے اسے نکالا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں؟ سادہ سی وجہ ہے، انسان اکثر بحث جیتنے کے چکر میں تعلق ہار دیتا ہے، حالانکہ تعلق زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ جگہوں پر ہوتا ہے اہم تعلق بھی، لیکن بہت ساری جگہوں پر بحث جیتنا اور دوسرے کو قائل کرنا سب سے ضروری ہوتا ہے۔ تعلق ہر جگہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی کہیں آپ اپنی بحث کرنے کی برتر صلاحیت کی وجہ سے کوئی فائدہ حاصل کر بھی لیں، لیکن ایسا چند ایک بار سے زیادہ نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں پر تعلق ہوگا وہاں ہر دفعہ آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ لازمی حاصل ہوگا۔ اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس لڑکے کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے وہ قائل نہیں ہوا۔
कोई भी इंसान चाहे वो कितना मर्जी बेवकूफ़ हो, उसके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो सामने वाले की नीयत के बारे में अंदाज़ा लगा सके। पहली नहीं तो दूसरी बार, दूसरी नहीं तो तीसरी बार तो उसे अंदाज़ा हो ही जाता है कि सामने वाला अपनी किसी बरतर सलाहियत के बलबूते पर अपना कोई मकसद हासिल करने के लिए उसे इस्तेमाल कर रहा है। बाज़ औक़ात लोग ये एहसास होते ही आपके मुकाबिल खड़े होकर आपको चैलेंज करने लगते हैं, जिससे बहुत सारे तनाज़ात जन्म लेते हैं, और इन तनाज़ात की मौजूदगी में आपका अपना कोई भी मकसद हासिल करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। बाज़ औक़ात यूँ होता है, या तो हालात इस तरह के होते हैं या सामने वाले में आपको चैलेंज करने की हिम्मत और सलाहियत नहीं होती, सो वो आपकी तरफ से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाता है। अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार इंसान ख़तरनाक होता है, क्योंकि अक्सर मनफी जज्बात और रवैये अदम तहफ़्फ़ुज़ की पैदावार होते हैं, और ये मनफी जज्बे और रवैये सबके लिए नुकसानदेह होते हैं। इनकी मौजूदगी में भी आप अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। उसने एक और कोशिश की, मगर उस लड़के के चेहरे के तासुरात बरकरार थे। इंसान ज़हीन मखलूक है। इस पर खुलूस और सच्चाई के अलावा कोई भी ट्रिक ज़्यादा देर तक काम नहीं करती। वो फराटे से अंग्रेज़ी बोलते हुए उस पर उतमाद से लड़के के चेहरे पर देखकर बता सकती थी कि वो कायल नहीं होगा, चाहे वो कोई भी दलील उसके सामने पेश करे। उसे हंसी आई। ऐसा होता है, ऐसा हम सब के साथ होता है। कोई ऐसी चीज़ होती है जिस पर हम यकीन कर लेते हैं, और फिर हम सोच समझ के सारी खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर लेते हैं। सामने वाला उसके खिलाफ जितना मर्जी समझाए, जो मर्जी दलीलें दे, उनका हम पर कोई असर नहीं होता। वो सब दलीलें हमारी अक्ल समझ की बंद खिड़कियों से टकरा कर वापस लौट जाती हैं, बिल्कुल ऐसी जैसे एक गेंद दीवार से टकरा कर लौट आती है। न दीवार का कुछ बिगड़ता है और न दीवार की दूसरी तरफ की फ़िज़ा में कोई फ़र्क पड़ता है। हुरैन अली, तुम अजीब तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल हो। अगर कोई बज़ाहिर मेरे रोज़ो शब देखे तो उसे तुम कहीं नज़र नहीं आओगी, लेकिन अगर कोई मेरे अंदर की दुनिया में झांके तो उसे तुम्हारे अलावा कोई नज़र नहीं आएगा। दुनिया के लिए तुम हकीकत हो, मेरे लिए तुम एक तसव्वुर हो। एक तसव्वुर, एक ख़्याल जो मेरे अपने जहन की पैदावार है। इसमें कुछ रंग तुम्हारी असल शख्सियत के भी होंगे, मगर ज़्यादातर मेरे जहन की फ़नकारी है। कभी आओ मेरी ज़िंदगी में और देखो, जो तसव्वुर मैंने तराशा है तुम्हारा, उसमें कितनी हकीकत है और कितना अफसाना। तुम्हारे लिए ये मवाजना यकीनन दिलचस्प होगा। वो ख़त अब उसके लिए फ़कत कागज़ के टुकड़े नहीं थे, वो किसी अजीब सी दुनिया के दरवाजे थे। वो एक एक खत को कई बार पढ़ चुकी थी, और हर बार पढ़ने पर वो नया महसूस होता, कुछ नए मानी आश्कार करता। वो शख्स कोई जादूगर था। उसने अपने लफ्ज़ों के सहर से कोई जादुई दुनिया तख्लीक की थी, और वह दुनिया किसी गैर मावराई ताकत के साथ उसे अपनी तरफ खींच रही थी। वो इस खिंचाव के सामने किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं कर पा रही थी। इस वक्त रात के 10:30 हो रहे थे, और वो बहुत सारे कागज़ों के दरमियान अपने बेड पर बैठी थी। वो कागज़ जो किसी अनजानी दुनिया के दरवाजे थे। उसके एक हाथ में एक चिट थी जिस पर सामिया का नंबर दर्ज था, जबकि दूसरे हाथ में मोबाइल था। पिछले 1.5 घंटे से वो एक तज़बज़ब की कैफियत में मुब्तला थी। वो फ़ोन करना चाहती थी, लेकिन कुछ था जो उसे रोक रहा था। उसके पाँव की जंजीर बन रहा था। क्या था वो? अहमर की मोहब्बत, या उसका अपना गुरूर, या कुछ और? वो समझने से कासिर थी। एक अरसे से वो अपने साथ ही जंग की कैफियत में थी। एक तरफ उस शख्स की लफ्ज़ों से बनी दुनिया थी, तो दूसरी तरफ उसकी अपनी हकीकी दुनिया। उसे अपनी दुनिया अजीज़ थी, मगर इस शख्स की दुनिया में भी कुछ कम कशिश न थी, और वो इन दोनों दुनियाओं के दरमियान कहीं मुअल्लक सी हो गई थी। वो अपनी दुनिया में भी पूरी की पूरी नहीं थी, और उसकी दुनिया की भी उसने झलक से ज़्यादा नहीं देखी थी। वो इस मुअल्लक सी कैफियत से तंग आ गई, सो आज वो आर या पार हो जाना चाहती थी। एक बार फिर उसने इस 11 हिस्सों पर मुश्तमिल नंबर पर नज़रें दौड़ाई। वो उसे हिफ्स हो चुका था। कितनी बार वो अधूरा नंबर मिलाकर बंद कर चुकी थी। इतनी उलझ क्यों रही हूँ मैं? क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? यही तो पता नहीं था कि क्या हो जाएगा। यही तो उलझन थी कि ये काल उसको ज़िंदगी को कौन से नए ढब डालेगी। बस हो जाए जो होना है। बिलाखिर उसने पूरा नंबर डायल किया। बेल जा रही थी। हर बेल के साथ वो अपने दिल की धड़कन की रफ्तार बढ़ते हुए महसूस कर रही थी। क्या हो गया है मुझे? उसे अपनी कैफियत पर हैरत हो रही थी। मैं कोई टीनेजर नहीं हूँ, और मैं अभी सामिया को कॉल कर रही हूँ। उसने अपने दिल को डपट कर चुप कराने की कोशिश की, मगर बेसुध। आज जाने क्यों धड़कनें बेहंगम हो रही थी। तीसरी बेल पर कॉल रिसीव हो गई। हेलो, वो सामिया की आवाज़ ही थी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सामिया, मैं हुरैन बात कर रही हूँ। हुरैन अली, इस्लामाबाद से। उसने अपना तारुफ करवाया। अरे आप कैसी हैं आप? वो एकदम पुरजोश हुई। हुरैन, जो कि अजीब सी कैफियत का शिकार थी, उसके पुरजोश अंदाज पर उसने अच्छा महसूस किया। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? अल्लाह का शुक्र है। आप सोच नहीं सकती कि आपकी इस कॉल से मुझे कितनी खुशी हुई है। मैं पिछले 4 माह से आपकी कॉल का इंतज़ार कर रही हूँ। मैं दरअसल मिलना चाह रही थी तुम्हारे चाचू से। उसके अंदाज में झिझक थी, ऐसी झिझक जो हुरैन अली का खासा नहीं समझी जाती थी। रियली, आई मीन, कब?
سامیہ کے انداز سے چھلکتی خوشی وہ فون کے اس پار سے بھی محسوس کر سکتی۔ میرے کزن کی شادی ہے، اس کی شاپنگ کے لیے ہمیں 1-2 دن میں پنڈی آنا ہے، میں چاچو کو بھی لے آؤں گی ساتھ۔ آپ بتائیں آپ کس ٹائم اور کہاں مل سکتی ہیں؟ دن کا یا شام کا ٹائم کر لو، 2 بجے کے بعد میں عام طور پر فری ہوتی ہوں۔ پرسوں کا یا اس سے اگلے دن کا پلان ہے ہمارا، بس 5 منٹ دیں آپ مجھے، میں ابھی پپھو سے کنفرم کر کے آپ کو کال کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ فون بند کر کے اس نے سامنے بیڈ پر رکھا اور پھر دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ تھام لیا۔ پتہ نہیں مجھے اس شخص سے ملنا چاہیے کہ نہیں، وہ ابھی تک تذبذب کا شکار تھی۔ 5 کے بجائے 10 منٹ گزر گئے مگر سامیہ کی کال نہیں آئی۔ اتنے دنوں سے احمد کی بھی کوئی کال یا میسج نہیں آیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس وقت یاد آیا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد سامیہ کی کال آئی۔ آئی ایم سوری، میں لیٹ ہو گئی۔ دراصل پپھو سے تو بات ہو گئی تھی، چاچو کا مسئلہ تھا تھوڑا سا، وہ بزی تھے نا۔ اس کے فون اٹھاتے ہی وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ شروع ہو گئی۔ وہ شاید کہیں سے بھاگ کر آئی تھی۔ چاچو کی کچھ مصروفیت کی وجہ سے اگلے 2 دن آنا مشکل ہے۔ دراصل میں نے چاچو کو آپ کا نہیں بتایا، انہیں سرپرائز کرنا ہے میں نے، تو اگر ہم اتوار کو آ جائیں تو آپ مل سکیں گے؟ اتوار کو؟ ہاں ٹھیک ہے۔ کچھ سوچ کر اس نے رضامندی دے دی۔ چلے پھر ڈن ہو گیا، اتوار کو دن کے 3 بجے پنڈی صدر میں ملیں گے۔ صدر میں کس جگہ؟ کسی کیفے یا ریسٹورنٹ میں، میں آپ کو ٹیکسٹ کر دوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ 4 دن کے بعد مل رہے ہیں ہم لوگ۔ کافی دنوں سے احمد نے چکر نہیں لگایا۔ اس دن کافی عرصے کے بعد وہ شام کی چائے پر مما کے ساتھ بیٹھی تھی جب انہوں نے اچانک ہی یہ موضوع چھیڑ دیا۔ ہاں بزی ہوگا، لاپرواہی سے کہتے ہوئے اس نے کانٹے میں کیک کا ٹکڑا پھنسایا۔ ہوگا یعنی تمہیں بھی پتہ نہیں ہے؟ چائے کا کپ واپس ٹیبل پر رکھتے ہوئے انہوں نے تیکھی نظروں سے بیٹی کو دیکھا۔ میں اس کی پرسنل سیکرٹری تو نہیں ہوں جو اس کے پل پل کی خبر رکھوں۔ اسے بھی ماں کا باز پرس کرنا اچھا نہیں لگا تھا، تبھی اس کے انداز میں ناگواری اتر آئی۔ تم لوگوں کے درمیان کوئی ناراضگی چل رہی ہے کیا؟ ان کی آنکھوں میں باقاعدہ تشویش اتری تھی۔ اب ایسا کچھ نہیں ہے ماما۔ کچھ تو ہے، مطلب اتنے عرصے سے احمد نے بھی چکر نہیں لگایا۔ تم بھی انسٹیٹیوٹ سے آنے کے بعد سارا ٹائم گھر میں فارغ رہتی ہو، اور سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ احمد کے پیرنٹس بھی ایک بار بات کر کے بالکل چپ سادھ کر بیٹھ گئے ہیں، جیسے انہوں نے کوئی سوال کیا ہی نہیں تھا ہم سے۔ ماما میں نے احمد سے کچھ ٹائم مانگا ہے، اس کے پیرنٹس نہیں بات کریں گے ابھی اس سلسلے میں۔ تمہیں کس چیز کے لیے ٹائم چاہیے اب؟ ان کے انداز میں شدید فکر مندی اور ناراضگی تھی۔ شادی زندگی بھر کا فیصلہ ہے، آنکھیں بند کر کے تو نہیں کر سکتی نا۔ تم نے ابھی آنکھیں کھولی ہیں؟ احمد اور اس کی فیملی کو کئی سال سے نہیں دیکھ رہی تم؟ پہلے کے دیکھنے اور اب کے دیکھنے میں فرق ہے۔ کیوں؟ اب تمہیں ایسا کیا نظر آ جائے گا جو اتنے سالوں سے نہیں آیا؟ ان کا انداز ڈپٹنے والا تھا۔ ماما پلیز، مجھے ابھی فیصلہ کرنے میں کچھ وقت چاہیے اور میں اپنا وقت لوں گی، وہ 2 ٹوک انداز میں کہہ کر اٹھ گئی۔ اسٹوپڈ گرل، پتہ نہیں کیا چل رہا ہے اس کے دماغ میں۔ انہوں نے بے بسی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ ہاں سامیہ، پہنچ گئی ہوں میں۔ ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے ہوئے اس نے سامیہ کو کال کر کے بتایا۔ کہاں ہیں آپ؟ اینٹرس میں ہوں تقریباً۔ اچھا آپ وہیں رکے، میں آ رہی ہوں۔ 2 منٹ کے بعد خوشی سے چمکتے چہرے کے ساتھ وہ اس کے سامنے تھی۔ آپ آ گئی؟ اس کے انداز میں بے یقینی تھی۔ ہاں میں نے کہا تھا میں آؤں گی۔ سچ پوچھے تو مجھے یقین نہیں تھا، اور چاچو کو سرپرائز سے زیادہ اس ڈر سے میں نے نہیں بتایا۔ کیا پتا آپ اینڈ میں آئی ہی نا۔ اتنی بے یقینی؟ اس نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا۔ بس تھی مجھے بے یقینی، اب چلیں جلدی سے، چاچو انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے تو وہ بھی اس کے ہم قدم ہو گئے۔ تم نے اب تو بتا دیا ہے نا انہیں میرے بارے میں؟ پیچ کلر کے سادہ سے لباس میں ملبوس، کھلے بالوں پہ سیاہ چشمہ ٹکائے وہ کچھ خاص پر اعتماد نہیں لگ رہی تھی۔ نہیں، آ جائیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ ٹیبلز کے بیچ میں سے گزر رہی تھی۔ اس ریسٹورنٹ میں اس کی توقع سے زیادہ رش تھا اس وقت۔ وہ کھڑکی کے ساتھ والی ٹیبل کے پاس آ رکی جہاں وہ ان کی طرف پشت کیے بیٹھا تھا۔ چاچو ان سے ملے، یہ ہے میری فرینڈ حورین۔ سامیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اس کی نظر اٹھی تھی اور پھر لمحے کے 1000ویں حصے میں گلاسز کے پیچھے سے جھانکتی بری آنکھوں میں شناسائی ابھری۔ بے یقینی سے وہ اسے دیکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ؟ حورین بھی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کوئی ایسی بھی معمولی شخصیت کا مالک نہیں تھا، وہ ویسا دبلا پتلا نہیں تھا جیسے یونیورسٹی میں ہوا کرتا تھا۔ دراز قد، متناسب ساخت، سلیقے سے بنے ہوئے گھنے خوبصورت بالوں اور گلاسز کے پیچھے سے جھانکتی پرکشش آنکھوں کے ساتھ وہ اس کی توجہ جکڑنے میں کامیاب رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا جبکہ وہ ابھی تک ویسے ہی حیران سا کھڑا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وعلیکم السلام، اس نے جیسے خود کو سنبھال کر نظروں کا زاویہ بدلا۔ اب وہ سامیہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے پھپھو بلا رہی ہیں، ابھی ان کا ٹیکسٹ آیا ہے، آپ لوگ بیٹھیں، میں 2 منٹ میں انہیں لے کر آتی ہوں، کہہ کر وہ الٹے قدموں واپس بھاگی۔ بیٹھیں پلیز۔ اس کا لب و لہجہ آج بھی ویسا ہی سحر انگیز تھا۔ اسے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ خود بھی دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد کافی دیر تک ان کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی حائل رہی تھی۔ سامیہ نے بتایا کہ آپ کی شاعری کی 2 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ بلاخر حورین نے اس اجنبی خاموشی کے تالاب میں پتھر پھینکا۔ آپ کو دلچسپی ہے شاعری میں؟
اس کی نظریں ایک بار پھر اس کے چہرے پر جمی تھی۔ میری؟ نہیں، اتنی کوئی خاص نہیں۔ اس لمحے نہ جانے کیوں اسے اپنے وہاں آنے کا فیصلہ نرا احمقانہ لگا۔ وہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہوئی ہوں۔ اور کیسی ہیں آپ؟ آپ کی 2 فرینڈز بھی ہوا کرتی تھی، وہ کیسی ہیں؟ اس نے جیسے اس کی کیفیت محسوس کر لی تھی اور اب اسے اس میں سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں، ریدا اور ہبا ٹھیک ہیں دونوں۔ کیا کر رہی ہیں آپ آج کل؟ وہ معمول کے انداز میں بات کر رہا تھا۔ میں جاب کر رہی ہوں ایز اے انسٹرکٹر ایک فنیشنگ اسکول میں۔ کلینیکل سائیکالوجی کی طرف نہیں گئی آپ بھی؟ نہیں، میرا انٹرسٹ نہیں تھا۔ ہم ہی لوگ گئے ہیں، کم ہی لوگ گئے ہیں اس طرف۔ ویسے میرے بیچ کے کافی لوگ گئے ہیں اس طرف۔ میں نے خود 2-2.5 سال پریکٹس کی ہے۔ آپ نے شاید ڈاکٹر شہباز کے ساتھ ریسرچ پروجیکٹ کیا تھا۔ ان کے کافی اسٹوڈنٹ گئے تھے کلینیکل کی طرف۔ آپ لوگوں کے پاس آؤٹ ہونے کے کچھ ہی عرصہ بعد ڈاکٹر شہباز بھی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ان کے بعد ذرا کم ہی لوگ اس طرف گئے۔ ہاں، پتہ چلا تھا مجھے ان کے جانے کا، لیکن ڈاکٹر طاہرہ بھی تو تھی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں، ان کی بھی اچھی پریکٹس چل رہی تھی۔ نہیں، وہ یونیورسٹی میں اتنے ایکٹیو نہیں تھی، اور ویسے بھی وہ اپنے ہسبینڈ کے کلینک میں بیٹھتی تھی۔ پھر گفتگو اسی رخ پر چل نکلی۔ یونیورسٹی میں ان کی آپس میں کبھی بات نہیں ہوئی تھی، مگر آج اتنے سالوں بعد کی ملاقات میں سارے حوالے یونیورسٹی کے ہی تھے۔ 20 منٹ کے بعد سامنے آئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک 40-45 سالہ خاتون تھی جو اس کی پھوپھو تھی۔ حوران کو ان سے مل کر اچھا لگا۔ وہ ایک سادہ مگر پرخلوص شخصیت کی مالک تھی۔ 10 منٹ مزید ان کے ساتھ گزار کر اس نے اجازت چاہی، کیونکہ ان لوگوں نے بھی جہلم جانا تھا، سو وہ بھی اٹھ گئے تھے۔ ریسٹورنٹ سے وہ ایک ساتھ ہی نکلے تھے۔ بہت اچھا لگا تم سے مل کر۔ ابھی اگلے مہینے میرے بیٹے کی شادی ہے، تم ضرور آنا، میں کارڈ بھیجوں گی تمہیں۔ جی ضرور۔ وہ لوگ پارکنگ میں کھڑے تھے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ سامیہ اور اس کی پھوپھو سے گلے ملنے کے بعد اس نے حشام احمد سے نظریں ملائی تھی۔ اللہ حافظ۔ ان بری آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ واپسی میں سارا راستہ وہ اس ملاقات کو ہی سوچتی رہی۔ لفظوں سے جادوگری دکھانے والا وہ شخص حقیقت میں بھی اپنی شخصیت میں ایک دھیما سا سحر رکھتا تھا۔ حوران کو اس سحر کا حصار اپنے گرد کھینچتا ہوا محسوس ہوا۔ پتہ ہے، چاچو کو شک ہو گیا تھا کہ یہ ملاقات ایسے بھی کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں تھی۔ اچھا، مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں کیسے آپ کو جانتی ہوں، میری دوستی آپ سے کیسی ہوئی؟ پھر کیا کہا تم نے؟ کہنا کیا تھا؟ گھما دیا انہیں میں نے۔ اس کی ہنسی ابھری۔ وہ ساری شام اسی ملاقات کے بارے میں سوچتی رہی تھی، اور پھر سامیہ کو رات کو کال کر لی تھی، اور اب پچھلے 15 منٹ سے وہ اس سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ آپ کو دیکھ کر وہ خوشی سے پاگل ہو جائیں گے، مگر وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہے ہیں۔ سارا راستہ بھی وہ سوچوں میں گم رہے۔ واپس آ کر بھی کھانا بھی نہیں کھایا۔ 2 گھنٹے سے چھت پر چکر لگا رہے ہیں، جانے کیا سوچ رہے ہیں۔ ویسے آپ کو نمبر دوں ان کا؟ آپ بات کریں گے ان سے؟ نہیں، میں کیا بات کروں گی؟ اس نے فوراً دامن بچایا۔ انہوں نے آپ سے کوئی بات کی؟ مطلب اپنے دل کی کوئی بات؟ نہیں، ہم لوگ یونیورسٹی کی باتیں کرتے رہے۔ حیرت ہے۔ پھر اس کی اکثر سامیہ سے بات ہونے لگی۔ اس نے خاکی لفافے میں مقید سارے خط پڑھ ڈالے، ایک بار نہیں بلکہ کئی بار، اور ہر بار وہ اسے کسی نئی جادو نگری کی سیر کراتے۔ حقیقی دنیا میں واپس آنے کے بعد بھی وہ اس کے اثر سے مکمل طور پر نہیں نکل پاتی تھی۔ اس نے اس کی شاعری کی 2 کتابیں خرید لی، نہ صرف خریدی بلکہ ہر حرف پڑھی بھی تھی، اور انہیں پڑھنے کے بعد وہ خود پہ نازا ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی، اس کے لبوں پہ ہمہ وقت ایک مسکان کا بسیرا ہوتا۔ اس کے ارد گرد موجود لوگ اس تبدیلی کو محسوس کر رہے تھے۔ تم بہت فریش لگ رہی ہو۔ یہ تبصرہ ہبا کا تھا۔ اب دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی ہیں، یہ اس کی کلیگ کا کہنا تھا۔ تمہاری سکن بہت گلو کر رہی ہے، یہ ماما نے نوٹ کیا، گو کہ وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی، مگر ایک چیز اس کے لیے بحران کن تھی کہ حشام احمد نے خود اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ سامیہ کا بتانا تھا کہ وہ کسی فلم کے اسکرپٹ پر کام کر رہا تھا آج کل، اور شدید مصروف تھا، لیکن پھر بھی اس کا رابطہ نہ کرنا حورین کو الجھن میں ڈال رہا تھا۔ وہ اسی الجھن میں تھی جب سامیہ نے اسے ایک نئی خبر سنائی۔ میرا اور عباد کا نکاح ہو رہا ہے اگلے جمعے کو، آپ نے ضرور آنا ہے۔ تمہارا نکاح؟ اتنا اچانک؟ خیریت؟ ہاں، خیریت ہی ہے۔ ویسے تو زرار بھائی کی شادی تھی اس ماہ کے اینڈ میں، مگر پتہ نہیں پھوپھو کو کیا سوجی، اچانک انہوں نے میری اور عباد کی بات چھیڑ دی۔ زرار بھائی عباد کے بڑے بھائی ہیں، دونوں میری پھوپھو کے بیٹے ہیں۔ یہ لوگ 2 ہی بھائی ہیں۔ پھوپھو شاید دونوں بیٹوں کے فرض سے اکٹھے ہی سبکدوش ہونا چاہتی ہیں۔ تم خوش ہو؟ بہت۔ 2 ہی تو میری مین خواہشیں تھیں، ایک یہ کہ چاچو کو آپ مل جائیں، اور دوسری یہ کہ میں اور عباد ایک ہو جائیں۔ دونوں ہی ایک ساتھ پوری ہونے جا رہی ہیں۔ میں بہت خوش ہوں۔ بہت مبارک ہو پھر تو۔ آپ بتائیں، آپ آ رہی ہیں نا اگلے جمعے؟ جی، دیکھتی ہوں میں۔ دیکھنا نہیں ہے نا، آپ کو آنا ہوگا۔ اس کے انداز میں ضد بھرا اصرار تھا، اور پھر اس نے اسے منا کر چھوڑا تھا۔ یہ کون سی راتوں رات تمہاری نئی دوست بن گئی، اور وہ بھی دوسرے شہر میں؟ ماما کو حیرت تھی، دوست بننے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ وہ ان کے بیڈ پر نیم دراز ہوئی۔ یہ تم کن چکروں میں پڑی ہوئی ہو آج کل؟ وہ متفکر ہوئی، ہاتھ میں پکڑا ٹیبلٹ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ پوری طرح سے بیٹی کی طرف متوجہ ہوئی، جو انہیں اپنی کسی سہیلی کے نکاح میں دوسرے شہر جانے کی اطلاع دینے آئی تھی۔ کن چکروں میں پڑی ہوئی ہوں؟ ان کی پریشانی کو اس نے سیریس نہیں لیا۔ انسٹیٹیوٹ سے آنے کے بعد تم سارا دن اپنے کمرے میں گھسی رہتی ہو، احمد کو الگ تم نے نظر انداز کیا ہوا ہے، اور یہ اچانک اب کون سی
तुम्हारी नई दोस्त निकल आई है, बताऊंगी आपको सारा कुछ तफसील से, मगर अभी नहीं, अभी मुझे पार्लर के लिए निकलना है, कहते हुए वो उठ कर बैठ गई। फिर कुछ शॉपिंग भी करनी है। अच्छा, जाना कब है? जुम्मे को। अभी निकल रही हूँ मैं, बाय। उसने सफ़ेद रंग की पाँव को छूती मैक्सी पहनी थी, जिसके सिर्फ गले और बाजू पर नफीस सा काम था, बाकी सारी सादा थी। इसके साथ लाइट पीच कलर का एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा था जो उसके दाएं कंधे पर फैला हुआ था। पाँव में उसने खुसे ही पहने थे। मेकअप हंसपे मामूल नेचुरल था। ज्वेलरी के नाम पर उसके कानों में सफ़ेद टॉप से स्याह सिल्की बाल खुले हुए बाएं कंधे पे पड़े थे। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि देखने वाले की नज़र एक लम्हे को पलटने से इनकारी हो जाए। ये दादी हैं, ये अम्मी हैं, फूफा से तो आप मिल ही चुकी हैं। ये जोहा है, मेरी छोटी बहन। सामिया उसे अपने घर के अफराद से मुतारिफ करवा रही थी और वह होंठों पर मुस्कुराहट सजाए इन सब से मिल रही थी। वो कभी भी बहुत सोचल नहीं रही थी, मगर इन सब से मिलना अच्छा लग रहा था। सामिया के वालिद इब्तिसाम अहमद 3 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। बहन सालिया अहमद बड़ी थी और हशाम अहमद छोटा। सालिया की शादी अपने चचाजाद से हुई, जो कि शुरू से ही उनके घर के ऊपर वाले पोर्शन में मुकीम थे। उनके 2 बेटे थे, ज़रार और इबाद। ज़रार आर्मी में था और इबाद अभी ज़ेर तालीम था। इब्तिसाम अहमद की 2 बेटियां थीं, सामिया और जोया। सामिया BS सोशियोलॉजी के फर्स्ट ईयर में थी, जबकि जोया अभी 7वीं जमात में थी। सामिया के दादा वफात पा चुके थे, जबकि दादी अभी हयात थी। वो एक मिडिल क्लास फैमिली थी। इब्तिसाम अहमद अपने वालिद का जनरल स्टोर चलाते थे। हशान अहमद ने चंद साल एक अस्पताल में साइकोलॉजिस्ट के तौर पर काम किया, मगर अब उसका ध्यान लिखने पर था। वो सब इकट्ठे रहते थे। सालिया की फैमिली ऊपर वाले पोर्शन में थी, जबकि दोनों भाई अपनी वालदा के साथ नीचे रहते थे। निकाह की तकरीब सादगी से हुई। ख़ानदान के लोगों के अलावा सामिया और आबाद के चंद दोस्त थे। इतने छोटे पैमाने की तकरीब के बावजूद मर्द हजरात ऊपर वाले पोर्शन में थे, जबकि ख़वातीन नीचे थीं। हुरैन का हशाम अहमद से मुश्किल 1-2 बार सामना हुआ। उसे देखकर उसकी बुरी आंखों में पहले शनासाई उतरी और फिर हैरानगी। वो उसकी ज़िंदगी का एक यादगार दिन था, जो इन सादा और पुरखलूस लोगों के दरमियान गुजरा। वो सब अजनबी होते हुए भी उसे अजनबी नहीं लग रही थी। दिन पलक झपकते गुजरा। शाम उतरी तो उसे वापस जाने का ख्याल आया। तुम कैसे जाओगी अभी? सालिया उसे रुखसत करते हुए फिक्रमंद थी। मेरे पास गाड़ी और ड्राइवर है, फिर भी शाम हो गई है अब तो, अभी सिर्फ 5 ही तो बजे हैं और वो मुश्किल 2-2.5 घंटे का रास्ता है। 8 बजे से पहले मैं घर पर होंगी। चलो, बहुत ख्याल रखना अपना, और ज़रार की शादी पर ज़रूर आना। जी इंशाल्लाह, ओके, अल्लाह हाफिज़। वो उनसे गले मिली थी। सामिया और उसकी अम्मी से मिलने के बाद वो उसकी दादी से मिली। खुश रहो, सलामत रहो। वो धीमे मिजाज की शफीक सी खातून थी। सामिया और सालिया उसके साथ बाहर तक गली तक आई, जहाँ उसका ड्राइवर इंतज़ार कर रहा था। वहाँ शाम और ज़रार पहले से खड़ रहे थे। निकल रही हैं आप? वो उससे मुखातिब हुआ। जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। वो गाड़ी में बैठ रही थी जब वो ड्राइवर की तरफ मुतवज्जा हुआ। रास्ते का पता है ना, खास करके इधर से मेन रोड तक? उसके लहजे की फिक्रमंदी ने हुरैन के दिल पर अपना नक्श छोड़ा था। तुम रह लोगी यहाँ? उसके अंदाज में वही फिक्रमंदी थी। क्यों नहीं, रह लूँगी। उसके होंठों पर दिल की तरीन मुस्कुराहट थी। वो एक खूबसूरत शाम थी और वो दोनों हशाम अहमद के घर की छत पर खड़े परिंदों को अपने ठिकानों की तरफ वापस लौटते हुए देख रहे थे। मतलब छोटा घर है, छोटा शहर है। तुम्हारी मोहब्बत तो छोटी नहीं है ना, तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह की कमी है। उसने बाउंड्री वॉल के साथ टेक लगाकर सीने पर बाजू बांधे, लेकिन फिर भी उसकी नज़रें आसमानों पर उड़ते परिंदों पर थी। फिर क्या? लबों पर महबम सी मुस्कुराहट लिए वो उसके सामने जा खड़ी हुई। तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा? उन बुरी आंखों में उलझन थी। जिंदगी आसान नहीं है, मुश्किल तो किसी न किसी रूप में हमेशा होगी। मैं क्यों ना मुश्किल का इंतहा खुद से करूं? इतनी गहरी बातें भी कर लेती हो तुम। तुम्हें क्या लगता था कि ये हुनर सिर्फ तुम्हारे पास है? वो खिलखिलाकर हंसी। पंखुड़ियों में छुपी मोतियों की लड़ी गुनगुनाती हुई वो दिलकश हंसी। उसका अंदाज सहरंगेज था। वो आंखें बंद किए उसे सुनती चली गई थी। सुर्खों सफ़ेद सॉरी सुर्ख सफ़ेद रंग के अरूसी लिबास में उसका हुस्न दमक रहा था। अपनी कलाइयों में पड़ी सुर्ख कांच की चूड़ियों से खेलती, लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट लिए वो उसके कमरे में उसके इंतज़ार में बैठी थी। अस्सलामुअलैकुम। वो उसके सामने आकर बैठा तो उसने पलकों की झालर उठाई। वालेकुम अस्सलाम। उसकी आवाज़ जल तरंग की तरह बजी। कैसी हो? बुरी आंखें उसके धमकते चेहरे पर जमी थी। ठीक। उसकी नज़रें वापसी के रास्ते भूल गईं। क्या देख रही हो? देख रहा हूँ, बल्कि सोच रहा हूँ कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। फिर मिला कोई जवाब? उसकी हंसी कमरे की फ़ज़ाओं में बिखरी। जो भी हो तुम, खुदा की कसम लाजवाब हो। जवाबन वो गुनगुनाया था। ये तुमने बनाया है खाना? वाकई? तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? मुझे नहीं लगता था कि तुम्हें ये सब आता है। आता नहीं था, मगर सीख लिया। सीख लिया? हाँ, तुम्हारे लिए सीख लिया। बुरी आंखों में मोहब्बत के समंदर मोर्जन हुए थे। उसकी गर्दन मजीद तन गई। चाहे जाने का एहसास खूबसूरत था।
जब सामिया और सालिया ने हशाम के लिए तुम्हारा नाम लिया तो मैं काफ़ी फिक्रमंद हो गई। वो उनकी गोद में सर रख कर लेटी हुई थी, उनकी उंगलियां उसके बालों में गर्दिश कर रही थी। तुम मुझे बड़ी नाजुक मिजाज लगी। मुझे खदशा सा हुआ तुम यहाँ नहीं रह सकोगी। आपको डर लगा कि मैं आपका बेटा छीन के ले जाऊंगी। उनके हाथ अपने हाथों में लेकर वो सीधी होकर लेटी। सच पूछो तो हाँ, मुझे खदशा सा हुआ था। उनके बुरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी। और अब क्या लगता है आपको? अब तो लगता ही नहीं कि तुम कहीं और से आई हो। लगता है हमेशा से यहीं रहती आई हो, ऐसे घुल मिल गई हो जैसे यहीं पली भरी हो। अरे भाभी बेफिक्र रहें आप, मैं खुद लेकर जाऊंगी सामिया को, सारी शॉपिंग कराऊंगी और फिर वापस लेकर आऊंगी। हुरैन मुझे मुनासिब नहीं लग रहा यूं इसका शादी से चंद दिन पहले अकेले निकलना। चंद दिन क्यों, 2 हफ्ते पड़े हैं अभी शादी को। और अकेली कैसे? मैं हूं ना इसके साथ। तुम कौन सी कोई बड़ी बी हो, रिश्ते में तो हूं ना भरी। प्लीज़ भाभी मान जाए। लेकिन हुरैन, भाभी मैं ले रही हूँ ना जिम्मेदारी, मुझ पर आपको यकीन नहीं है? बात यकीन की नहीं, यकीन ही की बात है। बस हम लोग जा रहे हैं। हुरैन, भाभी मान जाए ना। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। वो भागती हुई किचन से निकली। सामिया बाहर ही कान लगाए खड़ी थी। अब 5 मिनट के अंदर अंदर निकलो और अपने मजनू को भी खबर कर दो कि वक्त पे पहुंच जाए। जी जी। वो बुखलाई हुई अपने कमरे की तरफ भागी। मैडम, मैडम घर आ गया है। ड्राइवर ने हैरत से बैक व्यू मिरर में उसे देखा, जिसका घर पहुंचकर भी गाड़ी से उतरने का कोई इरादा नहीं था। हैं, कौन सा घर? उसने बेहद चौंक कर खिड़की से बाहर आते जाते पहचाने मनाजर पर नजर डाली। अपना घर मैडम। उसने अब गर्दन मोड़ कर देखा। ओ अच्छा, सही। वह एकदम दरवाज़ा खोल कर निकली। बिल्कुल बेदहानी में उसका पाँव मैक्सी के दामन में उलझा। अगर वो फ़ौरन घारी का सहारा न लेती तो गिरना लाजमी था। इस 2 घंटे के सफ़र में उसके तसव्वुरात ने जाने कौन कौन सी मनाजिल तय कर ली थी। वो वापस अपनी पुरानी दुनिया में आने के लिए जैसे तैयार नहीं थी। ये तसव्वुरात भी अजीब होते हैं, उनके हवाले इंसान खुद को कर दे तो जाने कौन कौन सी दुनियाएं देखा है। अपने कमरे की तरफ जाते हुए वो अपनी कैफियत के बारे में सोच रही थी। चेंज करने के बाद जब वो सोने के लिए लेटी तो नींद का कहीं नामो निशान नहीं था। उसका तस्वुर एक बार फिर से कई दुनिया सजाए बैठा था। वह किसी गैर हकीकी दुनिया में कदम नहीं रखना चाह रही थी, लेकिन उनकी कशिश के सामने वो ज़्यादा देर मुज़ाहमत भी नहीं कर सकी। उस रात नींद की देवी इंतज़ार करती रहेगी और इसके ख्यालों की दुनिया से आने से पहले खिड़कियों से सूरज की रोशनी छन छन कराने लगी। उसने करवट बदलकर साइड टेबल पर पड़ा फ़ोन उठाया। 7 बज रहे थे, आंखें जल रही थी, दिमाग बोझल था। मैं आज नहीं आ सकूंगी। उसने रज़ा को टेक्स्ट किया और फिर फ़ोन बंद करके मुंह तकिए के नीचे छुपा लिया। क्या ख्याल है तुम्हारा? मम्मा ने उसकी कोहनी हिलाई। जी। उसने चौंक कर उन्हें देखा। मैं पूछ रही हूँ क्या ख्याल है तुम्हारा? किस बारे में? उसने हैरत से उन्हें देखा। किस बारे में? पिछले आधे घंटे से जो तुम्हें किस्सा सुना रही हूँ इस बारे में। उनके अंदाज में शदीद नाराज़गी थी। ओह अच्छा। उसने माथे पर हाथ रख कर नजर चुराई। क्या हो गया है तुम्हें? किधर है तुम्हारा ध्यान? उन्होंने परेशानी से अपनी इकलौती लाद को देखा। कुछ नहीं हुआ मम्मा। कुछ तो हुआ है। तुम्हारी हरकतें शदीद मशकूक लग रही हैं मुझे। कौन सी हरकतों की बात कर रही हैं आप? ये जो तुम खोई खोई रहने लगी हो, नित नई दोस्तें बना रही हो, देर तक सो रही हो, छुट्टी भी की तुमने आज। हालांकि छुट्टी तुम किसी सूरत नहीं करती। हफ्ते के दिन हम सब घर पर होते हैं, मगर तुम फिर भी जाती हो। जी बस थक गई थी मैं, इसलिए छुट्टी कर ली। बाकी सब ठीक है मम्मा। हो रैन बेटा, कोई मसला है तो आप शेयर कर सकती हो मेरे साथ। उन्होंने उसका हाथ थामा। कोई मसला नहीं है मना मामा, सब ठीक है। एक बात बतानी है आपको, लेकिन कुछ दिनों बाद। उसने उनके कंधे पर सर रखा। कुछ दिनों बाद? अभी क्यों नहीं? अभी मैं किसी फैसले पर नहीं पहुंची। क्लास के दौरान उसे टेक्स्ट मैसेज का नोटिफिकेशन मिला। क्लास खत्म करके निकलते ही उसने चलते चलते फ़ोन चेक किया। अजनबी नंबर था और व्हाट्सएप की बजाय रेगुलर मैसेज था। दोनों बातें ही हैरानगी का बाइस थी उसके लिए। अस्सलामुअलैकुम, हशाम अहमद है। तो उसने बिलाहिर राब्ता कर लिया था। एक मुस्कुराहट ने उसके लबों का अहाता किया। वालेकुम अस्सलाम। काफ़ी सोचकर उसने जवाब दिया। वो उसके बाद लाशौरी तौर पर इंतज़ार करती रही, मगर कोई जवाब नहीं आया। उसे अपने इंतज़ार करने पर हैरत हो रही थी। आखिर क्यों मैं उस शख्स की तरफ खींचती हूँ? उसमें ऐसा क्या है आखिर जो किसी और में नहीं? वापस घर आते हुए वो अपने ही जहन में उठते सवालों की जद में थी। उसकी खामोशी, उसका धीमापन, उसकी शायरी, या फिर उसकी बेनियाजी। ताल्लुक़ रखते हुए बिला ताल्लुक़ कुछ तो है जो इस कदर पुरअसर है। मैं जो किसी से मुतासिर नहीं होती, मेरे मेयार तक कोई पहुँच नहीं पाता, और ये बज़ाहिर आम सा दिखने वाला शख्स मेरी सोचों पर काबज़ हो गया है। मैं उसकी खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अजीब सी उलझन थी जिससे वो खुद को निकालने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। शाम को दोबारा उसकी तरफ से मैसेज आया। कैसी हैं आप? उसने फ़ौरन मैसेज देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो फ़ौरन जवाब दे या नहीं। अल्लाह का शुक्र। 5 मिनट के बाद उसने जवाब दिया था। मुझे बात करनी थी आपसे। अगला मैसेज फ़ौरन आया। जी नहीं, फ़ोन पे नहीं, मैं मिलना चाह रहा था आपसे। ठीक है। उसने 2 मिनट के बाद जवाब दिया। मैं इस इतवार को इस्लामाबाद आ रहा हूँ, आपसे मुलाकात हो सकती है? जी बिल्कुल। कहाँ पे? आप मेरे घर आ जाएं। किस टाइम? जब आपको मुनासिब लगे। मैं सारा दिन घर में ही होंगी।
मैं तकरीबन 11:30 तक आऊँगा। ओके। चाचू ने आपसे बात की, लेकिन उन्हें आपका नंबर कहाँ से मिला? सामिया के लहजे में हैरानगी नुमाया थी। तुमने नहीं दिया था? सेल फोन कान से लगाए वो अपने बेड पे नींदराज थी। नहीं, मैंने तो नहीं दिया। मुझसे तो उन्होंने नहीं मांगा। फिर कैसे पता चला? हो सकता है उनके पास हो। आपका एड्रेस भी तो था उनके पास। हाँ, नंबर तो वाकई मेरा काफ़ी सालों से यही चल रहा है। लेकिन अगर उनके पास नंबर था तो उन्होंने रब्ता क्यों नहीं किया पहले? उन्होंने लेटर भी तो नहीं भेजे, हालांकि उनके पास आपका एड्रेस था। अब ये मिस्ट्री आप खुद ही सॉल्व करें कि वो इतने हेसिटेंट क्यों हैं। वैसे क्या कहा उन्होंने आपसे? कुछ खास नहीं, मिलने की बात की थी। ओह, तो मिल रहे हैं आप लोग? कहाँ? मेरे घर। मैंने सोचा मम्मा से भी मिलवा दूंगी, तुम भी आ जाना। नहीं नहीं, मैंने कबाब में हड्डी नहीं बना। वो हंसी थी। यहाँ अभी सिरे से कबाब ही नहीं बना, तुम हड्डी बनने की बात कर रही हो। आपके मेहमान आ गए हैं। वो बाल ब्रश कर रही थी जब मुलाजमा ने आकर उसे इत्तला दी। किधर हैं? बिठाया तुमने उन्हें? वो फौरन उठ खड़ी हुई। जी, ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। मुलाजमा ने दरवाजे में ही खड़े खड़े बताया। अच्छा, तुम चलो, चाय वगैरह का इंतज़ाम करो, मैं आती हूँ। जी। वो फुर्तीली सी लड़की थी, फ़ौरन वापस भागी। उसने शीशे में नजर आते अपने सरापे पर नज़र डाली। स्वेट ट्राउज़र पर उसने लेमन कलर की घुटनों तक लंबी शर्ट पहन रखी थी। लेमन कलर का शिफॉन का दुपट्टा सिमटा हुआ कंधे पे पड़ा था। छोटा सा कैचर उठाकर उसने सियासिल की बालों को कैद किया, फिर एक नज़र खुद पर डालकर वो कमरे से निकल आई। ड्राइंग रूम में जाने से पहले उसने किचन में झांका। मुलाजमा ट्रॉली सेट कर रही थी। सब तैयार है? जी बीबी, सब तैयार है, बस 10 मिनट के बाद ले आना। और मामा किधर हैं? वो तो अभी बाहर निकली हैं। मैं इन्होंने घर रुकने को कहा था। किधर गई हैं? ये तो पता नहीं, शायद साथ वाली बेगम साहिबा के घर गई हैं। अच्छा, निकली कब है? यही कोई 2 मिनट पहले। अच्छा चलो ठीक है, तुम ले आना ये 10 मिनट में, कहकर वो ड्राइंग रूम की जानिब भर गई। अस्सलामुअलैकुम, अंदर दाखिल होते हुए उसने सवाल किया। वालेकुम अस्सलाम। उस पर नज़र पड़ते ही वो उठ खड़ा हुआ। बैठें प्लीज़। वो उसके सामने वाली नशिस्त पर बैठी। कैसी हैं आप? बैठते ही उसने पूछा। अल्लाह का शुक्र। आई एम सॉरी, आपको इंतज़ार कराया। नहीं, ऐसा कोई इंतज़ार नहीं था, सिर्फ 5 मिनट हुए हैं मुझे। और सुनाएं, घर में सब खैरियत थी? जी सब ठीक है। ज़रार की शादी में फ़कत चंद दिन रह के हैं, उसी की तैयारियां चल रही हैं ज़ोरों शोर के साथ। सामिया ने बताया था मुझे। इत्तफाकात होते रहते हैं दुनिया में, मगर सामिया से आपकी दोस्ती थोड़ा अजीब इत्तफाक लगी मुझे। वो क्यों? उसने नज़रें उसके चेहरे पर जमाई। पता नहीं, बाज़-औक़ात कुछ चीज़ें हमें पता होती हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि वो कैसे पता हैं। उसकी नज़र शीशे की मेज़ की सतह पर जमी थी। आपको कोई एतराज़ है इस इत्तफाक पर? उसे उलझन हो रही थी। अब वो शख्स खुल क्यों नहीं जाता था आखिर? नहीं, एतराज़ तो नहीं है। उसका अंदाज़ ऐसा था जैसे एतराज़ ना होने के बावजूद भी कुछ हो। तो वो उसे खुलकर बोलने पर उकसा रही थी। तो ये कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको किसी शख्स पर शदीद गुस्सा आया हो, लेकिन हालात ऐसे हों या उस शख्स की पोजीशन ऐसी हो कि आप उस पर अपना गुस्सा निकाल नहीं सकें, लेकिन जैसे ही कोई ऐसा शख्स आपके सामने है जिस पर आप गुस्सा निकाल सकते हो, तो उसकी किसी ज़रा सी नापसंदीदा हरकत पर आप आपत्ति से बाहर हो जाएं और सारा गुस्सा उस पर निकाल दें। वो न जाने कौन सी पहेलियाँ भिजवाना चाह रहा था। हम सब ऐसा करते हैं शायद, न जाने अनजाने में, चाहते हुए या ना चाहते हुए। और इसके मौजू बदलने पर गैर आरामदेह सा महसूस कर रही थी। आपको नहीं लगता जैसे गुस्सा एक जज्बा है? चाहत भी ऐसा ही एक जज्बा है, एक अंधा जज्बा। हाँ, ये हम सब के अंदर मौजूद है, लेकिन पता नहीं चल पाता कि किसके लिए है। जो भी चीज़ काबिल चाह नज़र आती है, लगता है बस हम यही चाहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे गुस्से की मौजूदगी में जो भी शख्स काबिल गुस्सा नज़र आता है, हमें लगता है बस हमें इसी पे गुस्सा है। मैं कुछ समझी नहीं। उसकी खूबसूरत आंखों में उलझन तैर रही थी। सादा सी बात है, लेकिन समझ मुश्किल से आती है सबको। मुझे भी बहुत मुश्किल से और बड़ी देर से समझ में आई है। ये बात अभी यहाँ करने का कोई मकसद है? जी, मैं दरअसल यही बात करने आया था, कहकर वो उठ खड़ा हुआ। सिर्फ ये बात कहने? वो भी चेहरे पर हैरत सजाए खड़ी हुई। जी, काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि आपसे क्या कहूँ, बड़ी मुश्किल से ये बात सूझी। साथ ही उसने अपनी शर्ट के सामने वाली जेब से फोल्ड किया हुआ सफ़ेद कागज़ निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। और ये भी, ये क्या है? उसने हिचकिचाते हुए लेने के लिए हाथ बढ़ाया। ये आपके लिए कुछ लिखा था मैंने। लिखता तो खैर बहुत रहा हूँ और आपके लिए ही लिखता रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं अब समझने लगा हूँ वो पहले नहीं समझता था। सो ये लिखना पहले के लिखने से मुख्तलिफ है। मैं दुआ करूँगा कि आपको समझ आ जाए। पैंट की जेबों में हाथ डाले वो ज़मीन पर नज़रें जमाए उसके सामने खड़ा था और वो आंखों में उलझन और सवाल लिए कभी उस शख्स को देख रही थी तो कभी अपने हाथ में पकड़े उस सफ़ेद कागज़ को। इजाज़त चाहूँगा मैं अब, अल्लाह हाफिज़, कहकर उसने बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। अल्लाह हाफिज़। उसने खाली खाली नज़रों से उसे खुद से दूर होते देखा, ये जाने बगैर कि ये देखना आखिरी दफ़ा का देखना है। उसके नज़रों से ओझल होते ही उसने हाथ में पकड़ा कागज़ खोला। वो किसी राइटिंग पैड से निकला हुआ बगैर लाइनों वाला कागज़ था, जिसमें नीली रोशनाई में जानी पहचानी
लिखाई थी। हाँ, ये मुमकिन है, बहुत मुमकिन है कि तुम्हें मैंने बताया हो या किसी तहरीर ने मेरी यकीन तुमको दिलाया हो कि तुम मेरी आरज़ू तुम हो, मेरी जुस्तजू तुम हो, मेरी ज़ात पे छाई हुई कूबकू तुम हो, तुम ही वो नुक्ता हो, मेरी तलब की सब लहरें जहाँ पे आके मिलती हैं। तुम मौसम गुल हो, तुम्हारी आमद से दिल की सभी कलियाँ खिलती हैं। हाँ, ये सच है कि मेरी आरज़ू तुम हो, मेरी जुस्तजू तुम हो, मेरी ज़ात पे छाई हुई कूबकू तुम हो। मगर जाना तुमने ये नहीं जाना मेरी हस्ती की सच्चाई, नहीं चाहती तुम्हें पाना। मैं तुमसे आशना कब हूँ, मैं तुमको जानता कब हूँ, मैं खुद से भी हूँ कोसों दूर। बस इतना पता है मेरा कुछ लापता है, न जाने कब कहाँ मैंने कहीं कुछ खो दिया है। अब मेरे अंदर खला है और इसे भरने की चाह है। इस चाह के है रूप कई, हर मौसम में है तलब नई। कई चाहते पूरी हो भी गई पर नहीं भरा ज़रा खला। नहीं पता क्या उसकी चाह, पर इतना हूँ मैं जान गया, जो है जुस्तजू वह चाहता नहीं। हासिले आरज़ू मुझ में समाता नहीं, खालीपन है अंदर जो जाता नहीं। हाँ, ये सच है कि मेरी आरज़ू तुम हो, मेरी जुस्तजू तुम हो, मेरी ज़ात पे छाई हुई कूबकू तुम हो। मगर ये भी सच है जाना तुमने ये नहीं जाना मेरी हस्ती की सच्चाई, नहीं चाहती तुम्हें पाना। एक दो तीन न जाने कितनी बार उसने उसे पढ़ लिया। जो मतलब उससे निकल रहा था वो उसे कबूल नहीं करना चाहती थी, और जो मतलब वो निकालना चाहती थी वो कहीं से निकल नहीं रहा था। उसने सफ़ा पलटा। आई एम सॉरी, मेरी तरफ से भी और सामिया की तरफ से भी, जिसने आपको किसी ने ताल्लुक़ की उम्मीद दिलाई। उलझन, नाराज़गी, गुस्सा, वो बैक वक्त कई जज्बात का शिकार हुई। तभी मुलाजमा ट्रॉली ढकेलती हुई अंदर आई। आपके मेहमान चले गए? उसने हैरत से पूछा। नजर आ रहे हैं तुम्हें कहीं? उसकी आंखें शोले उगल रही थी। न न नहीं जी, वो हरासा हुई। तो फिर जाहिर है चले गए हैं ना। उसका लहजा फाड़ खाने वाला हो रहा था। मैं ये ले जाऊं वापस?" ट्रॉली की तरफ इशारा करती वो सहम कर पूछ रही थी। नहीं, लाकर मुझे दो, मैं इसे सर पर रख कर नाचूंगी। वो उड़ रही थी। मुलाजमा फौरन वापस पलटी। उसने हाथ में पकड़ा कागज मरोड़ कर सामने वाली दीवार पे दे मारा। फिर नहायत गुस्से से भरी वो कमरे से निकली। हशाम अहमद के मुंह से निकले हुए अल्फाज अभी तक कहीं कमरे की फ़ज़ा में मुअल्लक़ थे। अपनी सच्चाई साबित होने पर जैसे वो खुद ही मुस्कुराए थे। समझता क्या है वो खुद को? 2 टके का शायर। हैसियत ही क्या है उसकी? इसकी औकात ही क्या है? वो ताल्लुक़ नहीं बनाना चाहता मुझसे। माई फुट। एक ही एहसास था जो उसकी नस नस में जहर भर रहा था, और वो टकराए जाने का एहसास था। वो हुई रैनली जो चाहे जाने के लिए बनी थी, उसके साथ की लोग तमन्ना करते थे। उसने खुद उस शख्स की तरफ पेशरफ्त की और वो उसे उसके घर आकर ठुकरा गया था। उसने साफ कहा था वो उसे पाना नहीं चाहता, और वो अगर उससे ताल्लुक़ बनाने के ख्वाब देखती है तो वो माजरत खा है, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता। उसका दिल चाह रहा था कि सारी दुनिया को आग लगा दे। अपने कमरे में वो पागलों की तरह चकराती फिर रही थी। उसकी अना का महल जो सालों में तामीर हुआ था, टुकराए जाने के एहसास ने उसे कारी ज़रब पहुंचाई थी। वो शीशे की इमारत के मानंद एक ही पत्थर से ज़मीन बोस हुआ, और उसकी किरचियाँ उसकी रग रग में बिखर गईं। बेयकीनी, दुख, पछतावा, गुस्सा। यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी शान में कसीदे लिखने वाला शख्स कैसे उसको यूं धुतकार सकता है। दुख ये था कि उसके साथ उसने पूरी ज़िंदगी के ख्वाब देख लिए थे। उसकी तरफ खुद से पेशरफ्त करने पर उसे पछतावा हो रहा था। अपनी बेवकूफ़ी और इस शख्स की कमतरफी, दोनों पे उसे गुस्सा आ रहा था। वो पिछले 5 घंटे से अपने कमरे में बंद अपने ही जज्बात की आग में भर भर जल रही थी। बेड की साइड टेबल पर रखा उसका फ़ोन बजा। उसने आगे बढ़ कर रिसीव किया। सामिया का नंबर था। शदीद गुस्से ने उसे अपनी लपेट में लिया था। न चाहते हुए भी उसने कॉल रिसीव की। हुरैन चाचू। फ़ोन रिसीव होते ही वो बगैर सलाम दुआ के बोली। वो कुछ बताना चाह रही थी, मगर वहाँ सुनना कौन चाहता था। शट अप, जस्ट शट अप सामिया। बाहर में जाओ तुम और तुम्हारे चाचू। खबरदार जो आज के बाद कॉल की तुमने। वो पूरे ज़ोर से चीखी थी, और फिर कुछ भी सुने बगैर उसने फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन साइड टेबल पर पटक कर वो बेड पर गिरी थी। घटिया लोग, गलती मेरी ही है जो इन्हें सर पर चढ़ाया। खैर, अभी भी इतनी देर नहीं हुई, अपनी गलतियाँ सुधारना आता है मुझे। वो एकदम उठ कर बैठी। गहरे गहरे सांस लेकर उसने खुद को पुरसुकून किया। 2 मिनट के बाद वो साइड टेबल पर अपना फ़ोन उठा रही थी। हेलो अहमद, मैं ठीक हूँ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मैंने तुमसे फ़ैसले के लिए वक्त मांगा था ना, तो फ़ैसला कर लिया है मैंने। तुम कल ही ले आओ अपने पेरेंट्स को और शादी की डेट फिक्स करा लो। मैं सीरियस हूँ, इसमें मजाक वाली क्या बात है? कम ऑन, ऐसा मजाक पहले कभी किया है मैंने? हाँ, शादी की डेट, और करीब की डेट रखना, अगला हफ्ता या उससे अगला हफ्ता, इससे दूर मत करना। हाँ ठीक है, कर सकते हो तुम कॉल अब। नहीं, आज नहीं मिल सकती, कल तुम आना ना हमारे घर, तभी मुलाकात होगी। बस फिर कल मुलाकात होती है। ओके, खुदा हाफिज़।
उससे बात करके उसकी बेकरारी के बारे में जानकर उसने अजीब सा सुकून अपने अंदर उतरता महसूस किया। मुझे खुद को खामखा टॉर्चर नहीं करना, जो भी हुआ वो एक गलती थी। गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं और मुझे अपनी गलती को सुधारना आता है। उसने फ़ोन से सिम निकाली और फिर जाकर वॉशरूम में फ्लैश कर दी। फिर उसने अपना मुंह धोकर चेहरे से छलकते दुख और बेबसी के एहसास को मिटाना चाहा। तुमने क्या सोचा था हशाम अहमद? पागल हूँ मैं तुम्हारे लिए। तुम नहीं मिलोगे तो मैं मर जाऊंगी। शीशे में नजर आते अपने एक्स पर नजरें जमाए वो उससे मुखातिब हुई। नहीं, हरगिज़ नहीं। तुम जानते नहीं हो अभी के मैं कौन हूँ। उसने एक एक लफ्ज़ चबा कर अदा किया। कभी कभी मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैं हूँ कौन और मैं चाहती क्या हूँ। 2 साल के बाद बुरीदा के घर उसके कमरे में अपनी 4 माह की बेटी को गोद में लिए बैठी थी। तुम भी ना अजीब हो, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। उसके कप में चाय डालते हुए रिदा ने उसकी बात को ज़्यादा संजीदा नहीं लिया। अजीब होने की क्या बात है इसमें? उसने नाराज़गी से अपनी सहेली को देखा। अजीब बात ही है। अब ये तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो। चलो मैं बता देती हूँ। हुरैन हो तुम, हुरैन अली। बल्कि गुज़िश्ता 2 साल से तुम मिसिस हुरैन अहमर हो। आया याद? उसे चाय की प्याली थमाते हुए उसने उसकी आंखों में झाँका। हुरैन, हुरैन अली, मिसिस हुरैन अहमर। क्या इंसान सिर्फ नाम होता है? वो चाय की घूंट भरते हुए उसने अजीब से अंदाज में पूछा। हाँ, नाम ही इंसान की पहचान होती है। उसने लापरवाही से जवाब दिया। अरे ये सोई हुई है, तुम इसे क्यों उठाकर बैठी हो? दो, मैं इसे बेड पर लिटा दूँ, तुम रिलैक्स होकर चाय पियो। उसने उसकी गोद से उठाकर बच्ची को बेड पर लिटा दिया। नाम बदलता है, पहचान बदलती है, तो इंसान भी बदल जाता है। हाँ, बदल जाता है। खुद को देखो, तुम नहीं बदली। हल्की आवाज़ में टीवी ऑन करने के बाद वो उसके बराबर आकर सोफे पे बैठी। खुद को देखकर मैं हैरान होती हूँ। मैं बदली हूँ और शायद नहीं भी बदली, बल्कि मैं नहीं बदली। ये पहचान है मेरी जो बदल रही है। खुद पर कोई लेबल लगा लेती हूँ तो कभी कोई, लेकिन जिस पर लेबल लगा रही हूँ उसे नहीं जानती मैं। उसका अंदाज खोया खोया सा था। क्या हासिल करना है तुम्हें ये जानकर? सब कुछ तो है तुम्हारे पास पहले ही। इतना अच्छा शोहर, इतनी प्यारी सी बेटी, ससुराल भी अच्छा है। चैनल बदलते हुए वो शायद इससे ज़्यादा टीवी की जाने मुतवज्जा थी। हुरैन उसकी गैर संजीदगी के बावजूद बोले जा रही थी, क्योंकि ये बातें वो सिर्फ उसी से कर सकती थी। हाँ, अच्छा है, कहने को तो सब अच्छा है, लेकिन इदा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, अहमद गो के अच्छा शोहर है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। मगर अब वो वैसा नहीं रहा जैसा शादी से पहले था। यार, दुनिया का कोई आदमी शादी के बाद वैसे नहीं रहता जैसे पहले था। सब बदलते हैं। लेकिन अहमद क्यों बदला? इस पर कोई माली दबाव नहीं है और कोई मसला नहीं है। फिर भी कभी कभी मुझे लगता है कि उसकी दिलचस्पी मुझसे ज़्यादा अपने बिजनेस में है। हालांकि शादी से पहले मेरे सामने उसके लिए किसी चीज़ की कोई वक़्त नहीं थी। वो घंटों मेरे इंतज़ार में मेरे इंस्टीट्यूट के बाहर खड़े गुजार देता था। बिजनेस तो तब भी था, मगर तब उसे कोई फिक्र नहीं होती थी। मगर अब सब बदल गया है। उसके खूबसूरत चेहरे पर अफसुर्दगी छाई हुई थी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी ख्वाहिश अहमकाना है? यार, बी प्रैक्टिकल। वो सारी ज़िंदगी दीवाना बना तुम्हारे आगे पीछे तो नहीं घूम सकता ना? और भी है गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। वो रिमोट सामने टेबल पर छोड़कर उसकी जानिब पूरी तवज्जो से मुतवज्जा हुई। इन ख्वाहिशों ही की तो मुझे समझ नहीं आती। ये क्यों है? अगर है तो ही तो मुस्तकिल क्यों नहीं रहती? एक ख्वाहिश के पूरा होते ही इनकी जगह दूसरी क्यों ले लेती है? इंसान के अंदर का खालीपन क्यों नहीं भरता? इंसान सारी ज़िंदगी क्यों भागता रहता है? वो क्यों उम्र भर कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है? पता नहीं यार, ये फ़िलासफ़ी की बातें हैं, इनकी समझ नहीं है मुझे। बोर होकर कहते हुए वो टीवी की जानिब मुतवज्जा हुई और आवाज़ बढ़ा दी थी। हुरैन ने भी हार मानकर अपनी तवज्जो टीवी पर मरकूज़ कर ली। कुछ बातें समझने में सबको कुछ वक्त लगता है। असफन, मैं 7 साल से तुम्हारे लौट आने का इंतज़ार कर रही हूँ। इस लड़की के स्याह बाल बेहद चमकीले थे, मगर उसके चेहरे पर सदियों की थकन थी। तुम कौन हो? मैं रानिया हूँ। रानिया नाम है तुम्हारा? हाँ, लेकिन तुम हो कौन? मैं रानिया। रानिया तो तुम्हारा नाम है ना? हाँ, तुम हो कौन? बताया तो है, रानिया हूँ। अच्छा, तो तुम नाम हो, ठीक है। असफन, मैं 7 साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। नाम भी इंतज़ार किया करते हैं? तुम भूल गए? तुम चाहते थे मुझे, मैं चाहता था तुम्हें, तुमने मेरा इंतज़ार किया। हाँ, एक बात बताऊँ तुम्हें? बताओ। चाहत और इंतज़ार की राह का कोई अंत नहीं है। ये अनंत दायरा है। चाह करोगी, फिर मिलने का इंतज़ार, मिलने के बाद नई चाह, फिर नया इंतज़ार। इस सिलसिले की कोई हद नहीं। मेरी मानो तो निकल आओ इस दायरे से तुम। निकल के किधर जाऊँ अब? मैं तो 7 साल से एक नुक्ते पे खड़ी हूँ। फिर नुक्ते पे ही बात ख़त्म करो। दायरे को भूल जाओ। समझो भूल गई। फिर क्या? नुक्ता बेसिमत है। नुक्ते की लामहदूद सिमतें हैं। इसकी कोई सिमत नहीं, लेकिन हर सिमत उसकी है। देख लो, ये असफंद भी 7 साल की जेल काट कर तुम्हारे वाली बातें कर रहा है। बेचारी रानिया, बड़ा ही ट्रेजिक एंड है इस ड्रामे का। टीवी पर कोई कमर्शियल चल रहा था। ये वही ड्रामा है ना जिसका तुम और हिबा जिक्र कर रहे थे एक दफ़ा? उसके जहन में जाने कौन कौन से मंजर ताया हुए। हाँ, माही यार दी घरोली। कमर्शियल आने के बाद रिदा एक बार फिर चैनल पर चैनल बदल रही थी। ये ड्रामा अभी तक चल रहा है? नहीं,
कब का ख़त्म हो चुका है, ये तो आज क्लिप्स दिखा रहे हैं। इसके राइटर की बरसी है ना आज। व्हाट बरसी, क्या मतलब है तुम्हारा? उसे जैसे करंट लगा। जिक्र किया था ना हमने कि ये हशाम अहमद ने लिखा है, उसकी 2 साल पहले एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। क्या? उसने बेयकीनी से रिदा को देखा। बहुत अफसोस हुआ था मुझे भी। अफसोस तो खैर पूरे मुल्क को है, लेकिन हमारा तो यूनिवर्सिटी फेलो भी था ना। वो जाने क्या क्या कह रही थी, लेकिन वो कहीं और पहुंची हुई थी। होरैन चाचू। सामिया की आवाज़ नम थी। वो कुछ बताना चाह रही थी, मगर उसने नहीं सुना, बल्कि वो चीखी थी, अपनी पूरी कुव्वत के साथ चीखी थी। और फिर उसने अपनी सिम निकाल कर फ्लैश कर दी। तुम रो रही हो? रिदा ने बेयकीनी से उसके रुखसार पर बिखरते आंसुओं को देखा। मैं रो रही हूँ। उसने उंगलियों से अपने गाल छुए। वो वाकई नम थे। हाँ, पता नहीं क्यों रो रही हूँ मैं। तुम्हें पता है, बाज़-औक़ात कुछ बातें हमें पता होती हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि वो कैसे पता हैं। तुम क्या कहना चाह रही हो? रिदा ने हैरत से अपनी सहेली को देखा। कुछ नहीं, ऐसे ही जज्बाती हो गई थी मैं। और जज्बे तो अंधे होते हैं, पता ही नहीं चलता किसके लिए हैं। जज्बाती? तुम्हारी ना कभी पोइट्री में दिलचस्पी रही, ना ड्रामों में। तुम तो इसके करीब भी नहीं थी कभी। अगर दो अशिया एक जैसी खसूसियात और शख्सियात की हामिल हो, क्या वो तब भी करीब नहीं कहलाई जा सकती? मतलब? कुछ नहीं। टीवी पर नया क्लिप चल रहा था। रिदा की तवज्जो बटी थी। तुम अब नहीं चाहते मुझे? एक बात सच सच बताऊं? कोई किसी को नहीं चाहता। सबके अपने अंदर खला है, लामहदूद खला। सब उसी को भरने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन भरेगा नहीं, कभी नहीं भरेगा। ना तुम्हारे अंदर का खला भरेगा, ना मेरे अंदर का, और ना किसी और के अंदर का, चाहे सारी दुनिया उठा के इसके अंदर डालो। लेकिन क्यों? क्योंकि इसे भरना मकसद है ही नहीं। फिर क्या मकसद है इसका? इसका मकसद है इसके अंदर उतरा जाए, इसे खोजा जाए। पता नहीं कैसे बातें कर रहे हो तुम। क्या तुम वाकई नहीं चाहते मुझे अब? मैं कुछ नहीं चाहता। क्यों? मुझे मांगना नहीं है, मुझे भागना नहीं है, न दायरे की उस सिमत ना इस सिमत। मैं चाहता हूँ कि बेसिमत हो जाऊँ। मेरा दिल चाहता है नुक्ता बन जाऊँ, खाली खला में बेसिमत नुक्ता बन जाऊँ। क्या? वो जैसे इजाज़त तलब कर रहा था। स्क्रीन पर मौजूद स्याह चमकीले बालों वाली लड़की सिसक रही थी, बन जाओ। मगर स्क्रीन के उस पार मौजूद लड़की ने इजाज़त दे दी थी। शिकवे धुल से गए, शिकायतों का शोर मिटने लगा। अना की इमारत कब की मुंदहिम हो चुकी थी। अंदर अब खालीपन था, खामोशी थी। उस खालीपन में, इस खामोशी में वो सारा सच था, जिसमें सारी ख्वाहिशें, सारी शोरशें और सारा शोर डूब जाए। और फिर उसके किसी इंटरव्यू के क्लिप्स चलने लगे। क्या असफंद के किरदार के अंदर हशाम अहमद मौजूद है कहीं? हशाम अहमद हर उस शख्स के अंदर भी मौजूद है जो इस ड्रामे के किसी भी किरदार में खुद को महसूस करता है। क्या इस ड्रामे की कहानी किसी सच्चे वाक़े पर मबनी है? नहीं, ये सच्ची कहानी नहीं है। लेकिन कोई भी कहानी इतनी ही झूठ नहीं होती जितनी वो सच नहीं होती। मतलब ये कि किसी भी कहानी गो की सुनाई या लिखी हुई कोई भी कहानी मुकम्मल हकीकत नहीं होती, सो वो सच नहीं होती। लेकिन हर कहानी हकीकत के किसी न किसी रूप को ही उजागर कर रही होती है, सो वो झूठ भी नहीं होती। नाजरीन को शिकवा है, इस कहानी का कोई फैसला कुन इख्तिताम नहीं। हकीकी ज़िंदगी में आपको अपने इर्द गिर्द बहुत सारी कहानियाँ बिखरी नजर आएंगी। इनमें भी आपको बहुत कम फैसला कुन इख्तिताम नजर आएगा। किरदार बदलते रहते हैं, कहानियाँ जारी रहती हैं। एक कहानी से दूसरी कहानी निकलती है, दूसरी से तीसरी, लेकिन इख्तिताम पजीर नहीं होती। क्या वजह है आपने एक ही कहानी लिखी? क्या पता दुनिया की हर कहानी एक ही कहानी हो, कुछ खो जाने के एहसास की कहानी, किसी तलब की प्यास की कहानी। कोई जाने आगाज़ व अंजाम फ़कत अकल को बहलाने के लिए हो, और असल कहानी रूह में छुपे एहसास की हो। एहसास जो कि हर रूह में एक ही है, किसी खालीपन का एहसास। आपके ख्याल में कैसे भरा जाए ये खालीपन? आपके ख्याल में क्यों भरा जाए ये खालीपन? ग्लासेस के पीछे से झांकती मुस्कुराती हुई बुरी आंखें महवे सवाल थीं। और इसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल अपने अख्ताम को पहुंचा। आम तौर पे रूटीन के नावल से हट के था ये नावल, बट बहुत अच्छा नावल था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी दूसरे नावल्स की तरह ये नावल भी पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।